vibration and oscillations are same, but the word oscillations were termed by the people who are involved in making simple pendulum type clocks. Okay, so do not get confused that there is some distinction between vibration and oscillation. Yeah. So what is the simplest way of writing the definition of vibration? Okay. When motion repeat itself over a equal interval of time, it is called as vibration. And as I said, this term also means the same, but it is used by, the word was coined by clockmakers. The simplest example which I can give you right now is this. इसको आप अपनी मीन पोजीशन से डिस्टर्ब करिए. मीन पोजीशन मतलब इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन, and it will perform a to and fro motion like this. So one more way of saying is that to and fro motion about a mean position. Mean position is usually your equilibrium position, static equilibrium position, right? Now, a vibration can be useful also and vibration can be harmful also. मतलब there are both the things. ऐसा नहीं है कि vibration हमेशा they are like not they are avoidable, मतलब हम उसे पसंद नहीं करेंगे, but ऐसा नहीं है. Many cases you intentionally introduce vibration into the system. अगर मैं सिविल के एग्जांपल से सिविल के स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आपकी कंक्रीट मिक्सर में you do that, right? So basically most of the vibrations in machines and structures are undesirable. Okay, and one good example I like to show you over here happened, exactly don't remember the year, but something in 40s written over here, 1940s. There's a bridge collapse in Tacoma, it's in United States. Okay, so I'll show you that what happened actually over there. Tacoma Bridge, Washington, opened only a few months ago, was built at a cost of over $6 million. But misfortune overtakes the great structure. These are some of the most amazing pictures ever recorded by a newsreel. The actual collapse of the world's third largest suspension bridge. Only 35 miles an hour wind is blowing, but this apparently sets up a rhythmic swinging of the bridge, which increases with each swing. Finally, the swinging road and the suspension cables give way and plunge into the water below. Fortunately, the only casualties were the cars stored on the bridge and the dog. So I hope you have seen this video demonstrating that the bridge collapsed, and it's not a reason that it was due to some other reason. The only reason was it was due to vibration. Okay, so many times you might have seen people breaking the glass by matching their frequency with that with the disturbance frequency matches with the frequency of the system. So that is one theory which explains that vibrations can be very harmful or very detrimental for the health of your overall system. Okay, so whenever possible, as a designer, you must take care of this point that vibration must decrease. मतलब its amplitude. मतलब ठीक है आप completely उसे avoid नहीं कर सकते हो. I agree to that, but at least you must ensure that it is kept at its minimum. Okay, so that is the whole concept over here. चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले इंटरनेट में थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी है, मैं हॉटस्पॉट से प्ले कर रहा हूं इसलिए मैंने वीडियो ऑन नहीं किया हुआ अपना. ठीक है, एग्जांपल लेते हैं. मैं स्ट्रक्चर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं आपको. ठीक,
जैसे कि लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ अ बीम. सिविल इंजीनियर्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियर्स तो पढ़ते आए हैं वाइब्रेशंस को, बट सिविल इंजीनियर्स के लिए वाइब्रेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? लेट्स टेक दिस केस ओवर हियर. In fact, rather than this, let us take two cases. Just a minute. Now what we'll be doing is, आप जानते हैं कि ये डिफ्लेक्ट होगा इस तरीके से, and this will be is deflected position. यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेसेस होगी, यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेसेस होगी. लेट अस से दैट कि जो स्ट्रेसेस इंड्यूस हुई है मैक्सिमम पॉइंट पर, मैक्सिमम स्ट्रेसेस इसी पॉइंट पर इंड्यूस होगी. तो द लेट्स से सिग्मा नॉट इज द स्ट्रेस इंड्यूस एट दिस पॉइंट, और जो स्ट्रेस इंड्यूस हुई है सिग्मा नॉट, इट इज मोर देन सिग्मा अलाउएबल. तो क्या करोगे फिर आप? डेफिनेटली इट विल फेल. But we don't want our structure to fail, right? So what you will do? Sir, we'll do a simple thing. We know that हम इसका second moment of area increase कर देंगे. Second moment of area increase कर देंगे मतलब now what you will do is आप इसका depth increase कर दोगे. We have seen this lot many times. Nothing new in that. So second moment of area basically I've explained you. Its physical interpretation is that it increases the resistance, bending resistance, to be more precise. तो लेट्स से दिस इज योर न्यू, पहले ये h था, अब ये डेल्टा h आपने और ऐड कर दिया. अब अगर आप चेक करोगे यहां पर सिग्मा डॉट डैश, सिग्मा ओ डैश, सो यू रियलाइज दैट न्यू सिग्मा ओ डैश मतलब जब ये h प्लस डेल्टा h किया है आपने, तो लेट्स से आपने इतना थिकनेस बढ़ा दिया है, इतना सेक्शन मॉडुलस बढ़ा दिया है कि अब जो ये स्ट्रेसेस है ये अलाउएबल से कम है. चलिए, तो now you are happy that your design is finally safe. But let us, this was a case when your structure was subjected to static loading, right? What will happen? Let's say we have a dynamic loading. Dynamic loading simply means that this load will change its magnitude and direction. So let's say for the simplicity I'll take it as some sine function. ओमेगा टी टर्म क्या होती है, you'll understand it later on. तो sin थीटा समझ लीजिए अभी के लिए इसको बस. And theta will change, and theta is omega t. So time will change, theta will change, load magnitude and direction both will change. So looking to that, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि this would be some kind of scenario with this beam. कुछ ऐसा होगा इसके साथ. Something like this. So इस तरह से ये मूव करेंगे, करेक्ट. नाउ अगेन द सेम कंसर्न कि यहाँ पे जो स्ट्रेस है आपका सिग्मा नॉट, ठीक है, वो सिग्मा नॉट आपने चेक करा, बट इस बार डायनामिक स्टेट में चेक करा आपने, क्योंकि इस बार डायनामिक लोडिंग है. लोडिंग विच इज वेरिएबल, बेसिकली लोडिंग विच इज चेंजिंग विद टाइम इज डायनामिक. सिंपल लैंग्वेज है ना, मशीन डिजाइन में आप लोग डिटेल में पढ़ोगे. तो व्हाट यू हैव रियलाइज्ड दैट कि सिग्मा नॉट इज ऑफ कोर्स ग्रेटर देन सिग्मा अलाउएबल, and again there will be a failure. So now you will do the same thing because that is what you have learned in your static classes. कि सर एक काम करते हैं, इसकी थिकनेस बढ़ा देते हैं. I'll take another picture of it and then we will do it. सर इसकी थिकनेस हम बढ़ा देते हैं so that we can achieve the same thing. Let me use blue pen. तो ये आपने थिकनेस बढ़ा दी, चलो ठीक है. h प्लस डेल्टा h कर दिया, पहले h था डेप्थ.
Now if you check your critical stresses, you will find that sigma naught dash is more than sigma naught. Now this is something interesting over here. So the results you have obtained in static loading cannot be directly extrapolated for dynamic loading. That is what I am trying to say. स्टैटिक लोडिंग के रिजल्ट्स आप डायनामिक लोडिंग में एक्सट्रापोलेट नहीं कर सकते हो, कभी कर सकते हो, मेनी टाइम्स यू शुड नॉट. सो दिस इज कंप्लीटली लाइक काउंटर इंट्यूटिव, राइट? कि व्हाट यू आर थिंकिंग कि चलो सर यहां पर भी वो काम हो जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं. So that's why it's very important for you to understand how your structure behaves when it is subjected to dynamic load. So that is the importance of I should say introducing vibrations into civil engineering curriculum. ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियर्स तो बहुत डिटेल में आगे चल के पढ़ेंगे, तो उनके लिए भी एक एडेड एडवांटेज है. ऐसा नहीं आप स्ट्रक्चर्स नहीं पढ़ते हो, तो सभी के लिए ये एक इंपॉर्टेंट मैसेज है यहाँ पर कि डायरेक्ट स्टैटिक लोडिंग की थ्योरी आप always, it's not always true that you can extrapolate the theory of static loading to the dynamic loading. Why it will happen, we'll see that. So because something has happened over here, what has happened is you have increased the I. Now what happens by increasing the I is a question over here. So we'll see to that. So let's start with the classification of vibration, because ये बहुत important है. टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन मैं अलग अलग तरीके से इसे क्लासिफाई करूंगा. द वेरी फर्स्ट कैटेगरी इज फ्री वाइब्रेशंस एंड द सेकंड कैटेगरी इज फोर्स्ड वाइब्रेशन. देखो बड़ा सिंपल सा थ्योरी है. फ्री वाइब्रेशन बोले तो कि आपने डिस्टर्ब किया और सिस्टम को छोड़ दिया. यू हैव डिस्टर्ब्ड इट एंड यू लेफ्ट इट. तो ठीक है, जो बॉडी फोर्सेस ग्रेविटी के कारण लग रहे हैं वो लग रहे हैं, बट एक्सटर्नली आप कोई लोड नहीं लगा रहे. तो दैट इज व्हाट इज योर फ्री वाइब्रेशन. ठीक है, सो आई विल राइट ओवर हियर so system is allowed to oscillate continuously without any external disturbing agent. और यहां पर आपका जो सिस्टम होगा, इट विल बी सब्जेक्टेड टू डायनामिक लोडिंग. जैसे कि यहां पर पी साइन ओमेगा टी आपने लगा दिया, जो भी एग्जांपल दिया था मैंने आपको. अब हमारे सिलेबस में जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो फ्री वाइब्रेशन है. ये मैकेनिकल के और एक्सी के सिलेबस में है. सिविल के सॉरी मैकेनिकल नहीं, सिविल और एक्सी के सिलेबस में. मैकेनिकल के स्टूडेंट्स तो फोर्स वाइब्रेशन भी पढ़ेंगे, क्योंकि वाइब्रेशन उनको थ्योरी ऑफ मशीन में एक फुल ब्लो सब्जेक्ट बोल सकते हो, चैप्टर बोल सकते हो. बट मैं उम्मीद करता हूं कि अगर मैंने एक बेसिक क्लियर कर दिया आपका, तो अगर आप खुद से भी पढ़ना चाहोगे तो आप पढ़ लोगे बड़ी आसानी से. ठीक है, तो मेन चीज ये होती है, एज अ टीचर आई ऑलवेज बिलीव दैट डेवलपिंग एन एप्टीट्यूड ऑफ स्टूडेंट. वंस आई डेवलप द एप्टीट्यूड ऑफ एन स्टूडेंट, तो उसके बाद स्टूडेंट सेल्फ सफिशिएंट हो जाता है बुक पढ़ने के लिए. और अगर आपने स्टूडेंट को बुक पढ़ने लायक बना दिया, मतलब यू हैव वॉन एज अ टीचर योर बैटल. दैट्स व्हाट आई बिलीव एज अ टीचर. ओके, सो ऑब्वियसली यहां पर हम फोर्स वाइब्रेशन पढ़ेंगे, सॉरी फ्री वाइब्रेशन पढ़ेंगे, बट फोर्स वाइब्रेशन इज समथिंग व्हिच मैकेनिकल स्टूडेंट्स विल हैव टू कवर अप फॉर देयर वाइब्रेशन पार्ट. ओके, next would be another classification I'll take over here is on the method of dissipation. I'll take a new page only. On the basis of method of dissipation.
डिसिपेशन से मतलब क्या होता है? डिसिपेशन से मतलब मैं आपको समझाता हूं क्या होता है. देयर आर टू थिंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला तो हो गया अनडैम्प्ड, मतलब सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो नो डिसिपेशन. और इससे भी सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो एनर्जी सिस्टम से बाहर नहीं जा रही है. एनर्जी इज नॉट लिविंग सिस्टम. जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा कि जब फ्रिक्शन होता है, आपने इसको लेट से 100 जूल एनर्जी दी, तो ये यहां तक पहुंचते पहुंचते 0 हो जाएगी. फ्रिक्शन खा जाएगा, थर्मल एनर्जी के फॉर्म में ये हीट रिजेक्ट कर देगा. यस, वी ऑल नो दैट. तो ये इसे कहेंगे कि हम सिस्टम से एनर्जी बाहर जा रही है, डिसिपेट हो रही है ना. तो ये यहां पर आएगा. ये अनडैम्प्ड नहीं है डियर, ये डैम्प्ड. अनडैम्प्ड का मतलब ये हुआ ये बहुत क्लासिकल एग्जांपल है. यहां पर फ्रिक्शन भी है और डिसिपेशन भी है. डिसिपेशन नहीं है. ठीक है, मेरे पास बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है इसे समझाने का आपको अभी, क्योंकि ये पूरा रिजिड बॉडी डायनामिक्स का पार्ट है. बट मैं आपको एक सिंपल सा हिंट दे देता हूं. देखो, आपने एक बॉल रखी यहां पर. ये बॉल mg साइन अल्फा के कारण नीचे की तरफ जाने की टेंडेंसी रखेगी. करेक्ट. तो अब आप देखो, ये वाला जो पॉइंट है बॉल का, इसकी टेंडेंसी है आगे की तरफ जाने की. तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा पीछे की तरफ. और फ्रिक्शन अब क्या करेगा? टॉर्क जनरेट करेगा. और ये स्टैटिक फ्रिक्शन है अगर, तो मतलब स्लिपिंग नहीं हो रही है, तो प्योर रोलिंग जिसे हम कहते हैं. तो यहां पर ये बॉल फ्रिक्शन के कारण मूव होगी और किसी भी तरह का एनर्जी डिसिपेट नहीं होगा सिस्टम. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि फ्रिक्शन हमेशा डिसिपेट करेगा. 99% केसेस में फ्रिक्शन डिसिपेट करता है. कुछ 1% ये यूनिक है आपके मैकेनिकल सिस्टम्स में, जहां पर फ्रिक्शन रोलिंग में असिस्ट करता है. तो यहां पर फ्रिक्शन का काम डिसिपेशन का नहीं है, रादर देन फ्रिक्शन जो है वो इस बॉल को रोटेट करने में अपनी एनर्जी यूज कर रहा है. मतलब क्योंकि अगर आप देखो ना, सेंटर पॉइंट के अबाउट अगर आप चेक करोगे तो टॉर्क जो जनरेट हो रहा है वो सिर्फ फ्रिक्शन के कारण जनरेट हो रहा है और कोई सोर्स नहीं है. अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये बॉल कभी भी रोल नहीं कर पाती. प्योर रोलिंग मतलब नो स्लिपिंग, V इक्वल टू ओमेगा आर. ठीक है. तो हम अनडैम्ड सिस्टम्स यूजुअली डिस्कस करते हैं, बट ऐसा नहीं है. देयर आर डैम्ड सिस्टम्स इन प्रैक्टिस. कि प्रैक्टिस में तो यही होगा भाई कि डैम्पिंग होगी. डैम्पिंग का सीधा मतलब ये हुआ कि एनर्जी विल लॉस. तो यहां पर आपके वाइब्रेशन को इस तरह से दिखाया जाएगा और यहां पर जो हम नहीं पढ़ने वाले हैं कुछ इस तरह से. इट विल लास्ट फॉर सम टाइम ओनली. सिंपल वे में अगर मैं बताऊं आपको, बहुत सारी तरह की डैम्पिंग होती है. जैसे कि लिक्विड फ्रिक्शन, ये डैम्पनर्स यूज करते हैं हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में. मैं पढ़ाऊंगा आपको कि जब सस्पेंशन यूज करते हो आप गाड़ी में, तो गाड़ी के जो सस्पेंशन होते हैं डियर, वो क्या करते हैं? शॉक एब्जॉर्ब करते हैं, तो वो एनर्जी को डिसिपेट ही तो कर रहे हैं. ठीक है. तो ये विस्कस डैम्पिंग कहते हैं, बिकॉज द विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी व्हिच इज द बेसिक फंडामेंटल फॉर दिस काइंड ऑफ डैम्पिंग. विस्कोसिटी मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर या नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर. एक होती है सॉलिड फ्रिक्शन, ऐसा भी हो सकता है. अच्छा, लिक्विड फ्रिक्शन का एक एग्जांपल और दे सकते हैं. यहाँ पे लिक्विड नहीं बोले, फ्लूइड फ्रिक्शन का है अगर इन जनरल. तो एयर ड्रैग, अगर आप सिंपल पेंडुलम का भी एग्जांपल ले लो, लेट्स से यहाँ पे सिंपल पेंडुलम बना दो आप, क्योंकि सबसे क्लासिकल एग्जांपल है वाइब्रेशन को एक्सप्लेन करने के लिए. और यहाँ पे सब कुछ फ्रिक्शन विक्शन भी हटा दो आप, तो भी थोड़ी देर बाद ये रेस्ट पर आ जाएगा. क्यों? क्योंकि एयर ड्रैग एक्ट होगा इसके ऊपर. एयर ड्रैग क्या होता है ये भी मैं आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ाऊंगा. तो सॉलिड फ्रिक्शन. एक और चीज होती है जिसे मटेरियल हिस्टेरेसिस कहते हैं.
अभी मटेरियल साइंस की डेप्थ में ना जाते हुए मैं आपको इसको सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ। देखिए, मैंने इसको बेंड किया, लेट्स से, तो आपको लगता है ना, आपको समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर कुछ ये डिफॉर्म हुई है बॉडी। अब जब बॉडी डिफॉर्म हुई है तो क्या होगा? जब बॉडी डिफॉर्म हुई है तो डेफिनेटली इंटरनली सम रबिंग हैज टू बी देयर, इनके बीच में ग्रेन बाउंड्रीज के बीच में। अभी बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है ग्रेन बाउंड्रीज एक्सप्लेन करने का, बट आप ऐसा समझिए कि जब डिफॉर्मेशन होता है तो इंटरनली रबिंग होती है, और इंटरनल रबिंग के कारण एनर्जी डिसिपेट हो जाती है हीट के फॉर्म में। आपने देखा होगा, आप मटेरियल को जब डिफॉर्म करते हो तो वो गर्म हो जाता है, तो वो दैट इज अ फिनोमिनन एट्रीब्यूटेड फॉर मटेरियल हिस्टेरिसिस। ऐसे सिस्टम को भी अगर आप यहाँ पर ऑसिलेट, मतलब एक टंग करके छोड़ दोगे इसको, अगर इस पे फोर्स लगाया आपने और उसको छोड़ दिया तो ये थोड़ी देर के लिए ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा, खत्म। फिर उसके बाद वाइब्रेशन डैम्प आउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मटेरियल के अंदर हिस्टेरिसिस है। मटेरियल के अंदर जो आपने एनर्जी दी है, जो आप एनर्जी दे रहे हो, अगर वो एनर्जी बाहर नहीं निकल रही, मतलब सिस्टम फॉरएवर मूव करता है। तो अभी के लिए इस सब्जेक्ट में हम लोग फ्री वाइब्रेशन ऑफ अनडैम्प्ड, तो हम अनडैम्प्ड सिस्टम्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट वुड बी द नेचर ऑफ सिस्टम। नेचर ऑफ सिस्टम से मतलब ये हुआ बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? बेसिकली नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट, quantity required to describe configuration of system at any instant। बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो। पहला एग्जांपल आपका हो गया सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम, SDOF। मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, मतलब एक क्वांटिटी चाहिए आपके सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन को डिफाइन करने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल सिंपल पेंडुलम। जस्ट सिंपल पेंडुलम, जैसे यहाँ पर, तो यहाँ पर आप थीटा से इसे कंप्लीटली डिफाइन कर सकते हो। अब यहाँ पर बच्चा कुछ कुछ बोलता है कि सर एक्स वाई से भी तो दिखा सकते हैं कंप्लीटली। हाँ बिल्कुल बता सकते हो एक्स वाई से, बट एक्स वाई डिपेंडेंट नहीं है, एक्स वाई इंडिपेंडेंट नहीं है, एक्स वाई डिपेंडेंट है। तो आपको इंडिपेंडेंट क्वांटिटी चूज करना है। एक्स वाई डिपेंडेंट है एक दूसरे पर, अगर आप एक्स चेंज करोगे तो वाई भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा देख सकते हो कि मिनिमम नंबर ऑफ क्वांटिटी भी एक कितनी बार शब्द यूज किया जाता है। मल्टीपल डिग्री ऑफ फ्रीडम, जैसे कि सबसे क्लासिक एग्जांपल जो है वो है डबल पेंडुलम। तो यहां पर अगर मैंने θ1 और θ2 डिफाइन कर दिया तो ये दोनों बॉल्स की लोकेशन मैंने प्रॉपर्ली इन्फॉर्म कर दी है, मतलब कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम डिस्क्राइब हो चुका है। यहाँ पर थीटा से ही हो रहा था, यहाँ पर दो कोऑर्डिनेट्स लगेंगे डिफाइन करने। इनफाइनाइट डिग्री ऑफ फ्रीडम भी होती है। गेट में पूछ सकते हैं आपसे क्वेश्चन, जैसे कि ये वाला, ये मेरे को पता नहीं क्यों लगता है कि एक्सपेक्टेड गेट क्वेश्चन हो सकता है आगे चल के। ठीक है, आपने इसको डिफॉर्म किया, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये इस तरह से डिफॉर्म हुआ है ना, डिफ्लेक्शन हम पढ़ चुके हैं। अब आप देखिए ये एक इलास्टिक बॉडी है सबसे पहले तो डेफिनेटली रिजिड नहीं है, इलास्टिक है, तो ये डिफ्लेक्ट होगी। अब यहां पर अगर इस बॉडी के कॉन्फ़िगरेशन को आपको एक्सप्लेन करना है तो हम लोग तो सिर्फ मैक्सिमम डिफाइन करते थे, याद होगा आपको, वाई मैक्स आपने डिफाइन किया, बट पूरे के पूरी बॉडी के कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको डिफाइन करना है तो इसके हर एक पॉइंट का डिफ्लेक्शन आपको बताना पड़ेगा। एंड दिस बॉडी हैज इनफाइनाइट पॉइंट्स, एंड व्हेन यू डिफाइन द
deflection of all those infinite points, in those cases you might be able to completely define the configuration of the of this body. So basically what I'm trying to say is that to define configuration, I have to describe displacement of all particles of this body. मतलब basically infinite displacements has to be infinite displacement आपको डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका सिस्टम आप देख सकते हो स्टार्टिंग में। और भी एग्जांपल अगर आप चाहो यहाँ पर मल्टीपल डिग्री ऑफ फ्रीडम के, तो बहुत सारे एग्जांपल आपको दे सकता हूँ। तो आपको इसका डिस्प्लेसमेंट और इसका डिस्प्लेसमेंट x1 x2 दोनों डिफाइन करना पड़ेगा, तब जाके इस सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन होगा। सो मैकेनिकल एंड सिविल एंड एक्सी सब में सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो यहां से आपका सब्जेक्ट डेवलप हुआ जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, फ्री वाइब्रेशन। फ्री वाइब्रेशन से मतलब ये कि देयर इज नो एक्सटर्नल डिस्टर्बिंग एजेंट। डिसिपेशन नहीं है, मतलब जो एनर्जी आप दोगे वही एनर्जी सिस्टम के अंदर फॉरएवर रहेगी, ऑल्दो अनरियलिस्टिक बट बेस्ट थिंग टू स्टार्ट विथ। और नेक्स्ट इज सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो दिस इज लाइक द इजीएस्ट व्हाट यू कैन गेट फॉर योर एग्जाम, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ दिस। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, अब ध्यान से समझिएगा। बेसिक एलिमेंट्स ऑफ vibrating system, मतलब I am basically targeting to explain you those things which are untold, okay? मतलब जिसके ऊपर ध्यान नहीं जाता है यूजुअली, बुक्स का भी नहीं और स्टूडेंट्स का भी नहीं। बस इक्वेशन लिखकर सॉल्व करना एंड गेटिंग द आंसर इज नॉट अ बिग थिंग, ठीक है, वो तो आप कर लोगे, बट व्हाट इज द फिजिक्स, दैट इज माय रिस्पांसिबिलिटी टू टीच यू, ठीक है। हम एक सिंपल केस लेते हैं। ये है हमारा एक सिस्टम, ये है हमारा एक सिस्टम। जैसा कि मैंने आपसे कल भी कहा था कि आई विल बी कमिंग बैक टू दिस डिस्कशन। देखो डियर, ये इक्विलिब्रियम में है, मतलब मैं तो कहूंगा ऑल थ्री आर इन इक्विलिब्रियम। बट इनकी स्टेट में डिफरेंस है। इसे मैं कहूंगा, इसे मैं अगर डिस्टर्ब करूं तो ये वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा। ऐसे इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसे मैं अगर डिस्टर्ब करूंगा तो ये कभी भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आ पाएगा, तो दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब ये इक्विलिब्रियम में तो है बट अनस्टेबल स्टेट में बैठा हुआ है। बट स्टेट्स आर डिफरेंट। ये है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्यों? इसको मैं डिस्टर्ब करूंगा तो ये अपनी नेक्स्ट पोजीशन पर चला जाएगा, फिर से इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग अ क्वेश्चन, प्लीज चेक वेदर इट इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम और नॉट। अगर वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं है तो वो वाइब्रेट नहीं कर पाएगा। only those systems which are in stable equilibrium state vibrates. Now you need to understand that what are the basic elements of vibrating systems. तो अब एक स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए आपको क्या चाहिए, क्यों ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है और क्यों ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, दैट इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, एंड व्हाई इट इज वाइब्रेटिंग। लेट अस अंडरस्टैंड दिस, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए तो इस थ्योरी को स्टार्ट करते हैं। तो वेरी फर्स्ट थिंग रिक्वायर्ड इज, फर्स्ट एलिमेंट रिक्वायर्ड इज, जिसके बिना ये नहीं हो सकता,
वो है रिस्टोरेशन एलिमेंट. नाउ व्हाट इज अ रिस्टोरेशन एलिमेंट? रिस्टोरेशन एलिमेंट वो होता है विच ट्राइज टू ब्रिंग बैक body in its original position. जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर आपका एक बॉल है, इसको हमने डिस्प्लेस करा लेट से फॉर एग्जांपल. हाँ ऑब्वियसली बात है, अगर आपको चेक करना है वो इक्विलिब्रियम में है कौन से, तो आपको डिस्टर्ब करना पड़ेगा. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसके ऊपर एक mg लोड लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में. एक्सटर्नल लोड कुछ नहीं है, हम एक्सटर्नली कोई अप्लाई नहीं कर रहे हैं, ये तो ग्रेविटी का फोर्स है. ऑल्दो इट इज आल्सो एन एक्सटर्नल लोड, बट हम कोई एक्सटर्नली डिस्टर्बिंग एलिमेंट ऐड नहीं कर रहे हैं. तो इसका एक कंपोनेंट ऐसा होगा, एक कंपोनेंट ऐसा होगा, राइट. तो दिस इज क्रिएटिंग अ रिस्टोरेशन. तो दिस इज अ रिस्टोरेशन फोर्स ओवर. तो दिस इज अ ग्रेविटी बेस्ड रिस्टोरेशन. तो ग्रेविटी भी रिस्टोरेशन का काम करती है. एक और तरीके एग्जांपल देखते हैं. स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब यही हुआ ना कि कोई वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आने की कोशिश कर रहा है. तो वापस से कब आएगा? फोर्स लगेगा तभी आएगा. हवा मतलब और कोई रीजन तो है नहीं, बिकॉज हम जानते हैं कि बेसिक रीजन फॉर मोशन इज फोर्स ओनली. मान लीजिए हमने इसको स्ट्रेच करके यहां तक लिया है. अब क्या होगा? आप जानते हैं इस पे स्प्रिंग फोर्स लगेगा एक पीछे की तरफ. ये मीन पोजीशन थी इसकी. इसको हमने डिस्प्लेस करा इस डायरेक्शन में, तो स्प्रिंग फोर्स लगेगा इस पे पीछे की तरफ. ठीक है. यहाँ पे स्प्रिंग इज एक्टिंग एज अ, इलास्टिक फोर्सेस आर एक्टिंग एज अ रेस्टोरेशन. आप बात बड़ी ध्यान से समझिएगा. ठीक है सर, रेस्टोरिंग एलिमेंट तो हो गया, जरूरी है. एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और जरूरी है वो है, देखिए क्या होगा. इसी को हम समझें. तो मान लीजिए मैंने स्प्रिंग ली, मैंने ये सिस्टम लिया, ये इक्विलिब्रियम में, ये अनस्ट्रेच्ड है. ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में. मैंने इसको कुछ एक्स डिस्प्लेसमेंट, एक्स नॉट डिस्प्लेसमेंट दिया लेट्स से फॉर एग्जांपल, और छोड़ दिया. तो ये कहां जाएगा? फोर्स जिस तरफ होगा वहां जाने की कोशिश करेगा, है ना. और जीरो वेलोसिटी से छोड़ा. ऐसा नहीं कि इसको धक्का दिया मैंने, इसको डिस्प्लेस किया और छोड़ दिया, लाइक दैट. रिलीज कर दिया, मतलब जिसको बोलते हैं ना बिना, विदाउट एनी पुश एंड पुल. अब चूंकि इसके पास अब कोई फोर्स जो है इसका, ये स्टेट, अब जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा ये रेस्ट पर है और फोर्स लग रहा है इस पे इस तरफ, तो ये जाएगा टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन. अब फोर्स इस पे कंटिन्यूसली लग रहा है, यहां पर वेलोसिटी जीरो थी. आप सब जानते हो कि फोर्स लग रहा है कंटिन्यूसली, ये एक्सेलरेट होता रहेगा, एक्सेलरेट होता रहेगा, एक्सेलरेट होता रहेगा. यहां तक आते आते इसकी वेलोसिटी मान लो 50 मीटर पर सेकंड होगी फॉर एग्जांपल. बट जैसे ये 50 मीटर पर सेकंड पर आएगा, यहां पर इस पे लगने वाले फोर्स जीरो हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि ये स्प्रिंग अनस्ट्रेच्ड है यहां पर, करेक्ट. तो एक ही फोर्स लग रहा है इस पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वो है स्प्रिंग फोर्स, और वो जीरो हो जाएगा. बट इसकी वेलोसिटी अभी 50 मीटर पर सेकंड है. दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर. अब अगर आप न्यूटन का फर्स्ट लॉ लगाएं यहां पर, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, रिजल्टेंट फोर्स जीरो है किसी भी डायरेक्शन में, तो यहां पर आपकी बॉडी अपनी स्टेट को मेंटेन करने की कोशिश करेगी, बिकॉज उसके पास इनर्शिया होता है, उसका मास होता है. तो अगर आपको स्टेट चेंज करनी है तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा. तो यहां पर इसकी जो स्टेट है, जब वो यहां आएगा, वो है 50 मीटर पर सेकेंड, और रिजल्टेंट फोर्स जो है इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एफएक्स, वो है जीरो. तो होगा क्या? तो होगा ये कि ये आपका जो आपका मास है,
ये ओवरशूट कर जाएगा, मतलब ये अपनी स्टेट को मेंटेन करने की कोशिश करेगा, क्योंकि स्टेट चेंज करनी है अगर आपको इसकी 50 मीटर पर सेकंड को अगर आपको यहाँ पर रेस्ट चाहते हो कि डियर यहाँ रुक जाए तू, तो रोकने के लिए आपको फिर इसको फोर्स लगाना पड़ेगा एक्सटर्नली, तब जाके रुकेगा वो, क्योंकि न्यूटन का लॉ है ना, ये तो कॉमन सेंस है कि अगर आपकी कोई बॉडी 50 मीटर पर सेकंड से चल रही है और आपको उसको ऊपर रोकना है तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स 0 है सिस्टम का, तो यहाँ तो आप एक्सटर्नली लगाइए, और एक्सटर्नली आप लगा नहीं सकते क्योंकि अभी भी हम फ्री वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर होगा क्या, ये अपनी पोजीशन, ये अपने मोशन को कंटिन्यू करेगा, और मैं कहूंगा बॉडी विल ओवरशूट इट्स equilibrium position because of inertia. समझे आप इस बात को? तो इनर्शिया सेकेंड एलिमेंट है आपका, अगर इनर्शिया नहीं होता तो वाइब्रेशन नहीं होता। मास, तो दो एलिमेंट्स बहुत जरूरी होते हैं, एक होता है मास और एक होता है आपका रिस्टोरिंग एलिमेंट। अगर ये दोनों होंगे तो सिस्टम वाइब्रेट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अब होगा क्या, ये ओवरशूट कर लेगा। अब मैं आगे की पिक्चर भी बता देता हूँ ना, समझदार है वैसे आप लोग तो सब। अब ये ओवरशूट कर लेगा। अब जैसे ये यहां निकला, देखो जैसे ये यहां निकला, स्प्रिंग फोर्स अब इधर लगना चालू हो जाएगा। अब स्प्रिंग फोर्स यहां लगेगा, यहां इसकी वेलोसिटी थी 50 मीटर पर सेकेंड, अब मोशन इस तरफ हो रहा है इसका, है ना, क्योंकि 40-50 है, इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो होगी ना यहां पर भी, और वो इस तरफ होगी क्योंकि इस तरफ जा रहा था ये यहां पर, तो ये अपने मोशन को कंटिन्यू करेगा। बट जैसे ही आगे बढ़ा, इस तरफ आया, स्प्रिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होना चालू हो जाएगा, तो इसकी वेलोसिटी अब डिक्रीज होना चालू हो जाएगी, 40 मीटर पर सेकेंड, 30, 20 और 0 हो जाएगी। अब जैसे यहां पर देखोगे आप इसको तो ये अब इसके ऊपर फिर स्प्रिंग फोर्स तो इधर ही लग रहा है, क्योंकि ये स्ट्रेच पोजीशन नहीं है, ये स्ट्रेच्ड स्प्रिंग है, कंप्रेस्ड स्प्रिंग है, सॉरी स्ट्रेच नहीं बोलूंगा, यहां पर स्प्रिंग कंप्रेस स्टेट में, तो इस पर फोर्स इधर लग रहा हूं, फिर ये फोर्स इसकी वेलोसिटी को बढ़ाएगा 0, 10, 20, 30, 40, 50, और फिर जब ये यहाँ आएगा 50 पर, तो इसके पास इनर्शिया है, तो आपको उसको रेस्ट पे लाना है, तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। आप फोर्स तो लगा नहीं रहे हो एक्सटर्नली, तो फिर ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को ओवरशूट कर देगा, और ये फॉरएवर चलता रहेगा। बट प्रैक्टिकली क्या होगा, हिस्टेरेसिस होगा मटेरियल के अंदर, स्प्रिंग के अंदर हिस्टेरेसिस होगा, तो एनर्जी लॉस होगी, ठीक है, और यहाँ पर ब्लॉक और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होगा, तो एनर्जी लॉस होगी, और फाइनली ये सिस्टम रेस्ट पर आ जाएगा। तो थर्ड टाइप ऑफ एलिमेंट विच इज dissipation, and this dissipation is basically मैंने आपको बताया can be friction, can be solid friction, liquid friction और material hysteresis। तो अभी हम इसे नेग्लेक्ट करेंगे इन दिस कोर्स, वी वॉन्ट कंसिडर डिसिपेशन। बट कभी भी आपको कोई इस तरह का अगर ऑफर करता है वाइब्रेशन का प्रॉब्लम, तो डेफिनेटली उसमें डिसिपेशन होगा। ये तो कॉम्पिटिटिव के लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसलिए जरूरत नहीं है आपको इसकी, क्योंकि हम बिल्कुल स्पेसिफिक सिलेबस स्पेसिफिक पढ़ रहे हैं। याद रखिएगा, मास एंड रिस्टोरिंग एलिमेंट दो चीजें होना चाहिए, तभी जाकर ये वाइब्रेट कर पाएगा। जैसे यहाँ पर रिस्टोरिंग नहीं था, यहाँ पर फोर्स रिस्टोरिंग नहीं था, ये देखो mg जो था यहाँ पर एक्ट हो रहा है, सॉरी mg इधर एक्ट होगा नीचे की तरफ, इसके दो एलिमेंट होंगे, तो ऐसा और एक ऐसा, राइट। तो ये mg जो है ये डिस्टरबेंस की डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर ये ग्रेविटी जो है ये डिस्ट्रॉय कर रही है इक्विलिब्रियम। तो ग्रेविटी कभी डिस्ट्रॉय भी कर सकती है, ग्रेविटी कभी रिस्टोर भी कर सकती है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ओवर हियर। तो डिपेंड करता है कि आपके पास रिस्टोरिंग एलिमेंट है कि नहीं। रिस्टोरेशन कैसे पता चलेगा, डिस्टरबेंस के अगेंस्ट आपका फोर्स होना चाहिए। यहाँ पे डिस्टरबेंस के अगेंस्ट है आपका फोर्स, आपने डिस्टर्ब किया ऐसे और फोर्स लग रहा है ऐसे, दैट्स व्हाई इट इज अ रिस्टोरेशन फोर्स। So now let us solve a problem and develop an equation and see what happens.
चलिए, सो जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं एक चीज और बता देता हूँ, वैसे मैकेनिकल को पता होता है, सिविल के स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूँ। यहाँ पर स्प्रिंग की स्टिफनेस के से डिनोट करते हैं। के का मतलब होता है लेट्स से 10 न्यूटन पर मीटर अगर दिया हुआ है तो 1 मीटर में मतलब 1 न्यूटन, सॉरी 10 न्यूटन अगर आप फोर्स लगाओगे तो स्प्रिंग 1 मीटर डिफ्लेक्ट होगी, स्ट्रेच होगी या कंप्रेस होगी, इधर ऑफ। इसका मतलब ये होता है, तो जितनी ज्यादा स्टिफनेस उतना हार्डर होगा आपके लिए स्प्रिंग की लेंथ को चेंज करना। So that is one important property which we have seen, and spring force is equals to k into x. ये एक assumption होता है, ठीक है, कि आपने लीनियर स्प्रिंग अज्यूम करी है, बट अदरवाइज अगर आप देखें तो स्प्रिंग फोर्स जो है आप सब जानते हो, हमने assumption लिया है कि स्प्रिंग फोर्स x के साथ अगर आप देखोगे तो काइंड ऑफ अ कांस्टेंट आपने अज्यूम किया है। बट आपको पता है कि जैसे जैसे आप x के साथ मतलब कैसे देखें हम, y इक्वल टू m कैसे देख रहे हैं, ये स्ट्रेट लाइन ऐसे देखो, सॉरी y इक्वल टू mx, ये k हो गया आपका, और ये k कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट। बट एक्चुअली में आप सब जानते हो कि जब मैं स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगाऊंगा तो शुरुआत में उसको स्ट्रेच करना आसान होता है, बाद में उसको स्ट्रेच करना डिफिकल्ट होता है। तो हम स्प्रिंग को लीनियर स्प्रिंग अज्यूम करेंगे, है ना। अंडर ग्रेजुएट लेवल पे आप लोग से लीनियर ही अज्यूम करते हैं, ठीक है। चलिए, आई नो दैट थोड़ा मैं फास्ट जा रहा हूँ, मे बी आई डोंट नो वेदर यू आर फीलिंग इट और नॉट, बट आई नो इट, ठीक है। बट वी हैव टू कंप्लीट इट विद इन अ स्पेसिफिकेटेड टाइम, राइट, क्योंकि थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप यू आर कंफर्टेबल व्हाटएवर इज गोइंग टिल नाउ। एनी क्वेश्चंस प्लीज लेट मी नो। Please let me know in case any question is there, and I hope the speed is comfortable. We'll do a mathematical modeling of the system. ये स्प्रिंग के है जो हमारा रिस्टोरिंग एलिमेंट है, और यह मास m है। तो बेसिकली वी हैव बोथ मास एंड स्प्रिंग बोथ एज आवर रिस्टोरिंग एलिमेंट, मतलब मास एज अ inertia element and spring as a restoring element. Since we have both of them, we can expect a vibration over here. बहुत ध्यान से समझिएगा, हो सकता है चीजें आसान लगे बट एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो सकती है। अगर कंसंट्रेशन लूज हुआ तो कॉम्प्लिकेट हो सकती है, अदरवाइज तो बहुत सिंपल है। अब थोड़ा मैथमेटिक्स आ जाएगा। चलिए, हमने इसे, अब मैं इसे पॉइंट से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। अगेन एंड अगेन ड्राइंग दिस मास वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, तो मैं इसका जो सेंटर है इससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। लेट्स से हमें इसे स्ट्रेच किया, स्प्रिंग को स्ट्रेच करें, यहां पे लेकर आए और छोड़ दिए, तो यहां से मेरा प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। t इक्वल टू, मैंने इसको स्ट्रेच किया, है ना। आई होप यू कैन फील दिस। आई स्ट्रेच्ड इट, होल्ड किया, वॉच स्टॉप वॉच चालू करी मैंने, जैसे स्टॉप वॉच चालू करी मैंने छोड़ दिया इसको, तो t इक्वल टू 0 यहां पर है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि मैं प्रोसेस कहां से स्टार्ट करूं, है ना। समवेयर इन बिटवीन अगर मैं न्यूटन्स लॉ लिखूं, कहीं पे भी लिख सकता हूं, मैं कहीं पे भी लिख सकता हूं न्यूटन्स लॉ, ऐसा नहीं है। मतलब मैं टुवर्ड्स ये वाली जो जर्नी थी हमारी इधर वाली, यहां पर भी किसी सेंटर पॉइंट पे लिख सकता हूं, एनीवेयर यू कैन राइट, नो प्रॉब्लम। बट एक चीज ध्यान रखें कि ये मेरा मुझे कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर सेटअप करना है तो दिस इज माय, यहां से मैं x, हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है,
मुझे बताना चाहिए एज अ टीचर आपको सबसे पहले कि ये x पॉजिटिव है मेरा इस डायरेक्शन और यहाँ मेरा कोऑर्डिनेट 0 मतलब x इक्वल टू 0 यहाँ पे दिया है ना। x इक्वल टू 0 यूजुअली हम कहाँ प्रेफर करते हैं, जो आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन x इक्वल टू 0 इज योर इक्विलिब्रियम। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स से मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ किसी भी इंटरमीडिएट स्टेट पर। So what I'll observe is that there is a spring force acting like this. Spring force acting like this, which is Kx. तो यहाँ पर x मान लेते हैं कुछ डिफॉर्मेशन स्प्रिंग के अंदर हुआ है, बस और तो कोई फोर्सेस नहीं है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। यहाँ mg लग रहा है, ये नॉर्मल लग रहा है, which is of least concern to me because I am interested in resultant force in x direction. Let me use this equation f equal to ma. एक्सेलरेशन को मैं लिख सकता हूं, आप जानते हैं d2x अपॉन dt स्क्वायर। तो यहाँ पे जितने भी डॉट्स होंगे, डबल डॉट, सिंगल डॉट, वो सब टाइम के रिस्पेक्ट में होंगे। क्योंकि काफी सारे डॉट्स आते हैं, अभी तो आपके सिलेबस में इतने नहीं आएंगे, बट थोड़ा हायर लेवल पे जाओगे तो आएंगे। डबल पेंडुलम की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो बहुत सारे डॉट्स आएंगे। डबल पेंडुलम वैसे भी न्यूटन्स लॉ, ये मेथड्स हम करते नहीं है, यूजुअली लेग्रांज इक्वेशन और इस तरह के टेक्निक्स यूज की जाती है उसके लिए। ठीक है, अभी हम इसकी बात करें। So let's write over here. रिजल्टेंट फोर्स जो लग रहा है वो मेरा माइनस kx लग रहा है, क्योंकि ये मेरा पॉजिटिव है, इक्वल टू मास। एक्सेलरेशन मुझे निकालना है, तो mx डबल डॉट प्लस kx। ये इक्वेशन क्या बोल रही है कि आपका रिजल्टेंट फोर्स अगर पीछे की तरफ है तो आपका एक्सेलरेशन भी पीछे की तरफ होगा। नो डाउट इन इट। तो आप लिख सकते हो mx डबल डॉट प्लस kx इक्वल टू। एक बच्चे को कभी कभी ये भी डाउट आ जाता है, देखना समझना इस बात को, सर आप इसको यहाँ पुश कर रहे हो, ठीक है, इस चीज को समझिएगा। तो आप भी तो फोर्स लगा रहे हो, वो फोर्स कहाँ गया? देखो यार, इसको ना हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि हम इसे क्वासिस्टैटिकली कर रहे हैं, और नहीं तो फिर आप एक काम करो, इसको ऐसे सोचो कि आपने यहाँ पर चालू किया, t इक्वल टू 0 तक ले गए, छोड़ दिया, फिर ये छोड़ोगे तो यहाँ पर है, अभी यहाँ से छोड़ोगे, फिर ये किधर जाएगा, ये इस तरह से मूव करेगा। देखो मेरे साथ, आप इधर ले गए, फिर इधर जाएगा 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 जाएगा, फिर वापस कम बैक करेगा और अब इधर आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको कहीं पे भी लिख सकते हो आप। और आप चाहते हो कि नहीं सर हमें यही समझाओ कि यहाँ कैसे करना है, बच्चा कुछ कुछ बोलता है सर नहीं यही, तो जो आप फोर्स लगा रहे हो वो जस्ट अपोजिट होगा स्प्रिंग फोर्स के, मतलब क्वासिस्टैटिकली इस प्रोसेस को आप करें, समथिंग लाइक दैट। बट दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब जो चीज है वो आप ध्यान से समझिएगा कि इसे सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं हम, x डबल डॉट प्लस k बाय m x इक्वल टू 0, और यहाँ पर हम ओमेगा n डिफाइन करते हैं, विच इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम इसके बारे में। मैं इसको फिजिकली एक्सप्लेन करूंगा आपको क्या होती है, बट अभी के लिए थोड़ा मैथमेटिक्स हमें करना पड़ेगा, लाइक अगले 15-20-25 मिनट तक। ओमेगा n इज व्हाट इज कॉल्ड एज नेचुरल फ्रीक्वेंसी। So this is a basic differential equation for a free vibration। मैंने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया यहाँ पर, कोई डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट किया एक्सटर्नली, ऑफ, अनडैम्प, कोई डैम्पनर नहीं लगाया यहाँ पर हमने, और ये सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है। x इज द कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड टू मेजर। चलिए अब डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और इसके सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। तो
दिस इज d2x अपॉन dt2 प्लस ओमेगा n स्क्वायर x इक्वल टू, बहुत ही सिंपल सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। सेकंड ऑर्डर क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ये है, और लीनियर क्यों है? क्योंकि इसकी पावर दिस फर्स्ट ऑर्डर, सॉरी लीनियर सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और याद रखें कि दो सेकंड ऑर्डर है तो दो बाउंड्री कंडीशन लगेगी इसको सॉल्व करने के लिए। तो इसका सोल्यूशन होता है, मे बी यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस, x इक्वल टू a cos ओमेगा n t प्लस, आप मैथमेटिक्स पढ़ोगे तब आपके टीचर आपको सिखा देंगे। यहाँ तो आपके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में तो डेफिनेटली आपने इससे डिटेल में पढ़ा होगा, बट अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो आप अगर मैथ पढ़ोगे आगे चल के गेट के लिए, तो वहां पर ये चीज बड़ी कॉमन है, पढ़ाई जाती है। इस इक्वेशन को मैं नंबर 1 नाम देता हूँ। अब देखो यार डियर, 15 से 20 मिनट है ना प्योर मैथमेटिक्स चलेगा, फिर मैं फिजिक्स लेकर आऊंगा वापस से, क्योंकि मैथमेटिकल इक्वेशंस हमें डिराइव करना पड़ेगी पहले। तो ठीक है, इसे हम लेट अस डू इट क्विकली। तो इसका एक और फॉर्म है, अदर फॉर्म। यहाँ तो कुछ बुक्स में आपको ये दिखेगा, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो, कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, ए को रिप्लेस कर देते हैं सी साइन साइ से। जस्ट मैथमेटिक्स चल रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, फिजिक्स विल कम, ओके, सो जस्ट वेट, विल डेवलप सम फिजिक्स फ्रॉम हियर, डोंट वरी। तो आप x को लिख सकते हो सी साइन साइ ओमेगा एन टी प्लस सी कॉस साइ साइन ओमेगा एन टी, करेक्ट? सो दिस इज योर सिंपल वे ऑफ राइटिंग इट। सी सी कॉमन ले सकते हो आप, और साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी वाला केस हो जाएगा आपका। तो दिस कैन बी रिटन एज x इक्वल टू सी साइन ओमेगा एन टी प्लस साइन, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स, और मैं एक काम करता हूं, फ्रॉम 1 वेलोसिटी निकाल लेता हूं x डॉट, तो क्या हो जाएगी माइनस ए साइन माइनस ए ओमेगा एन साइन ओमेगा एन टी। तो फ्रॉम 1 में 1 को डिफरेंशिएट किया हूं, प्लस बी ओमेगा एन कॉस ओमेगा एन। ओके फ्रेंड्स, और अगर आप 2 से निकालना चाहें वेलोसिटी तो 2 से भी निकाल सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। तो 2 से निकालोगे तो और सिंपल है, x डॉट हो जाएगा c ओमेगा n cos ओमेगा n t प्लस साइन। ये अलग अलग फॉर्म्स एक्चुअली में अलग अलग चीजें एक्सप्लेन करेंगे आगे चल के, इसलिए इसको मैं इस तरीके से डील कर रहा हूं। अब यहाँ पर दोस्त बहुत सारे केसेस बन सकते हैं आपके, देखो मैं बताता हूँ। हम सबसे जनरल केस समझते हैं, क्या धीरे धीरे फिजिक्स भी आएगा। अब मैं थोड़ा सा फिजिक्स लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखिए अब मेरा टारगेट क्या है, अगर मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो मुझे दोनों कांस्टेंट को निकालना होगा, तभी तो मुझे एक्स इक्वेशन ऑफ मोशन आएगी मेरे पास। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ मोशन। तो वो कब आएगी, जब मैं ए और बी निकाल लूंगा, बिकॉज ए एंड बी आर अननोन फॉर मी। ए और बी बोल लीजिए, या फिर सी और, ऐसे देख लो, या फिर कुछ लोग इसको ऐसे देखना पसंद करते हैं कि सी और साइ बता दो, एक एंगल और एक दोनों कांस्टेंट है बेसिकली। तो दो बाउंड्री कंडीशंस हमें निकालना होगा। देखिए तो मैं आपको बाउंड्री कंडीशंस बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। तो इनिशियल कंडीशंस हमें बतानी है बेसिकली क्या है। आपने स्प्रिंग को स्ट्रेच करा, मेरे साथ रहिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, बड़ा सिंपल है। आपने स्प्रिंग को स्ट्रेच करा, यहां से चालू करे, ये x इक्वल टू 0 है, और यहां तक खींच के ले आए। अब यहां पे दो चीजें हो सकती है, या तो आप इसे रिलीज कर दो, या फिर आप इसको फर्दर आगे की तरफ पुश कर दो और फिर छोड़ो। मतलब मैं अगर आपको यहां पर दिखाऊं, सो लाइक दिस इज माय लेट्स से स्प्रिंग ओवर हियर, मैंने स्ट्रेच करा ऐसे और ऐसे छोड़ दिया। डिड यू गेट दिस? दिख रहा है आपको मैं जो परफॉर्म कर रहा हूं? मैंने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया, I'll look at myself and then I'll do it so that I'm more confident.
ओके यस, सो आई एम हियर। ये मेरा ब्लॉक है, मैंने इसको स्ट्रेच किया लाइक दिस, स्ट्रेच 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 स्ट्रेच, ऐसे फेंक दिया लाइक दिस स्ट्रेच, और ऐसे मैंने रिलीज कर दिया। एक ये हो सकता है और एक ये भी हो सकता था कि मैंने इसको स्ट्रेच किया, छोड़ दिया, स्ट्रेच एंड गिवन सम इनिशियल वेलोसिटी। तो दो चीजें यहां पर हो सकती है, समझिएगा। यहां तो मैं इसको स्ट्रेच करके छोड़ सकता हूं, या फिर मैं स्ट्रेच करके इसको आगे फेंक सकता हूं। सो हम जनरल केस लेते हैं, आगे चल के मैं एक्स डॉट जीरो कर दूंगा, वेलोसिटी जीरो कर दूंगा, मतलब यहां पे बाउंड्री कंडीशन क्या बन गई मेरी, टी इक्वल टू जीरो, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट, और एक ये बन गई कि टी इक्वल टू जीरो, एक्स डॉट इक्वल टू सम इनिशियल वेलोसिटी एक्स डॉट नॉट, लाइक दिस। अब अगर आप कुछ बच्चा बोलता है सर मैंने तो ऐसे नहीं करना है, मैंने तो उसको स्ट्रेच करना है और मुझे इसको ऐसे छोड़ना है, तो भाई छोड़ देना, फिर एक्स डॉट को माइनस लिखना, एक्स डॉट नॉट माइनस आएगा आपका, क्यों, क्योंकि प्लस एक्स इधर है आपका। कुछ बच्चा बोलता है कि सर मैंने इसको स्ट्रेच किया और रिलीज कर दिया, तो एक्स डॉट नॉट जीरो हो जाएगा। कुछ बच्चा बोलता है सर मैंने इसको स्ट्रेच ही नहीं किया, मैंने इसको स्ट्रेच ही नहीं किया, मैंने क्या किया, यहां रखा और बस इसको इनिशियल वेलोसिटी दे दी, तो फिर एक्स नॉट जीरो हो जाएगा। आई शो यू दैट। तो यहां पर अगर हम लिखते हैं एट टी इक्वल टू जीरो, टाइम टी इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू एक्स नॉट, मतलब ये इनिशियल डिस्प्लेसमेंट दिया हमने, और एट टी इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू एक्स डॉट इक्वल टू एक्स डॉट। तो हम दोनों चीजें अज्यूम कर रहे हैं, कुछ एक जीरो भी हो सकती है, कोई बहुत बड़ा यहां पर मेरे लिए एक क्या बोलना चाहिए, लिमिटेशन नहीं है इस चीज को। चलिए, तो दोनों बाउंड्री कंडीशन सब्स्टिट्यूट करते हैं और आंसर को समझने क्या आएगा। तो देखिएगा, यहां पर अगर मैं, थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा हमारे लिए इस चीज को डील करना, मैं काम करता हूं यहां पर करता हूं, ठीक है, तो ज्यादा आसान हुआ क्योंकि इक्वेशन पैरेलली दिखेगी, बाद में इसे मैं शिफ्ट कर दूंगा। एट टी इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू एक्स नॉट, तो फ्रॉम वन आई कैन राइट टी इक्वल टू जीरो डाल दो भाई, तो ये टर्म जीरो हो गई, एक्स इक्वल टू आ जाएगा आपका ए ए, टी इक्वल टू जीरो, एक्स एक्स नॉट, तो एक्स नॉट ए के बराबर आ जाएगा, वेरी सिंपल। और एट टी इक्वल टू जीरो, एक्स डॉट इक्वल टू एक्स नॉट डॉट, है ना, इसको हम वी नॉट कह देते हैं, थोड़ा वेलोसिटी का फील आएगा आपको, ये वी नॉट है, इनिशियल वेलोसिटी। तो यहां पर है आपके पास, जस्ट अ मोमेंट, तो फ्रॉम टू हम यूज करेंगे, नहीं टू नहीं, हमें यूज करना पड़ेगी इक्वेशन 3, करेक्ट, इसको 3 कह देते हैं। तो t इक्वल टू जीरो डालोगे यहाँ पर, तो ये टर्म पूरी जीरो हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड वी नॉट आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका बी ओमेगा, यस, ठीक है। अब बाकी तो बड़ा सिंपल मैथ है, देखते हैं क्या, ए और बी आ गए। तो आप क्या कर सकते हो, एक चीज ध्यान में रखिएगा, आपने एक सब्स्टिट्यूशन किया था, आपने लिखा था a इक्वल टू सी साइन साइ, मैं पेस्ट कर देता हूं इसको, रिमेंबर दिस आई होप।
ए इक्वल टू सी साइन साई हमने और बी इक्वल टू सी कॉस साई किया था। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ए बी भी निकाल रहा हूँ, मैं सी और साई भी निकाल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास दोनों फॉर्म की इक्वेशन हो जाएगी। तो अच्छा रहेगा हमें चीजों को समझने के लिए। और बुक्स में दो अलग अलग दी जाती है, बुक्स में किसी बुक में फर्स्ट यूज की जाती है, किसी बुक में सेकंड यूज की जाती है। तो मैं आपको दोनों केसेस बता रहा हूँ, किसका क्या मतलब है, किसका क्या यूज है, सब समझ में आएगा आपको। थोड़ा सा टाइम दे मैथ्स को। देखो यहां से मैं एक चीज लिख सकता हूं, यूजिंग देम। In fact, let us take them over here. We have enough space with us. So if I square and add them, I'll get c square, right? So what is my a square and b square? A square is x naught square. B square is v naught square upon omega n square, and this is what is equal to c. So I have my c with me now. ठीक है। और अगर मैं यहां से देखूं, साई निकालना है मुझे, तो टेन साई, मतलब मैं दोनों को डिवाइड कर रहा हूं, तो इक्वल टू ए अपॉन बी। तो ए अपॉन बी विल बी इक्वल टू, ए है आपका एक्स नॉट, इज जस्ट अ मिनट, हाँ जस्ट अ मिनट। तो यू हैव सी साइन, जस्ट अ मिनट, चैट बॉक्स मुझे चालू करना पड़ेगा। यस, सो वी हैव एक्स नॉट और v है आपका v नॉट अपॉन ओमेगा। तो यहां पर आपका साई आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ एक्स नॉट ओमेगा एन अपॉन, ठीक है। चलिए, तो इक्वेशन बन गई आपके पास। अब कुछ भी नहीं है, अब आप लिख सकते हो आपका। देखो अब ये याद रखिएगा, फाइनली हमारे पास रिजल्ट आ चुके हैं, इसे मैं यूज करूंगा। ये बहुत फ्रेंडली इक्वेशन है। ए सॉरी, ये नहीं, मुझे तो एक्स चाहिए ना, एक्स का एक्स ही है। एक्स लिख दीजिए, क्या होगा, आंसर आ गया आपका, इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई आपकी, डिस्प्लेसमेंट आ गया आपका यहाँ पर। फिजिक्स समझेंगे इसका। एक्स इक्वल टू सी कितना है यहाँ पर, रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वी नॉट स्क्वायर अपॉन ओमेगा एन स्क्वायर, करेक्ट। प्लस tan इनवर्स ऑफ एक्स नॉट ओमेगा एन अपॉन, so this is guys an equation to be remembered। ये आपको याद रखनी है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे मैं बता दूंगा सारे क्वेश्चन उड़ जाएंगे आपके, एक इक्वेशन, सिर्फ एक इक्वेशन याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना। ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा ऊपर वाली, मतलब एक तो ये याद रख लेना, ये तो आप डिराइव भी कर सकते हो 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट भी नहीं, 30 सेकंड्स के अंदर आप डिराइव कर सकते हो, इसमें कुछ बहुत बड़ा डेरिवेशन नहीं है। बट इसका जो सॉल्यूशन है वो ये है। अब यहाँ पर आप अलग अलग केसेस ले सकते हो, जो आपकी इच्छा हो, ठीक है। तो ये आपका एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ चुका है। चलिए इसे समझते हैं। तो गिव मी अ मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा चीज़ों को।
This is your x. This is your. चलिए इसको प्लॉट करते हैं. Let us plot this. यहाँ पर मुझे एक वेक्टर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा. ठीक है, सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है. ठीक है, डोंट टेक इट वेरी, बस ध्यान से समझेंगे, समझ में आ जाएगा. रिप्रेजेंटेशन है और कुछ नहीं. इसे मैं सी कह रहा हूं. दिस इज माय सी. कौन सा सी? ये सी जो आपने निकाला है. दिस इज योर सी, राइट? डोंट फॉरगेट. ये साई है, एंगल. इसको साई डिफाइन किया. अब सी साइन फाई क्या होगा? So this will be c sin phi. C sin psi, sorry. What is c sin psi? देखिए जरा. c sin psi अगर आप देखें ध्यान से तो a है. और a क्या है आपका? a x नॉट. तो यहाँ x नॉट इक्वल टू a और a है हमारा c sin psi. जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन. मतलब ये वेक्टर का प्रोजेक्शन अगर मैं एक्स एक्सिस पे लूंगा तो मुझे डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा पार्टिकल का. मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूं इस इक्वेशन को. स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा. तो चलिए पहले मैं कर्व प्लॉट कर देता हूं और आपको दिखाता हूं कैसे इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे. बड़ा ही सिंपल है. और थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा क्योंकि सारी चीजें ना एक साथ सब समझ में आएगी जब मैं बहुत सारे केसेस एक साथ आपको पहले मैं आपको बताऊंगा, फिर उसके बाद आपको सारी चीजें और डेप्थ में क्लियर होंगी. ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा. थिंग्स विल डेफिनेटली क्लियर ऑफ विद टाइम. t इक्वल टू 0 पे यहां से स्टार्ट हुआ. चलिए मैं और भी आपको चीजें समझा देता हूं. जैसे देखिए, किसी भी इंस्टेंट पर बात करते हैं. यहां पर टाइम टी पर, मैं टाइम टी पर यहां पर हूं. ये टाइम है मेरा, टाइम डोमेन ये रहा. और मेरी लोकेशन है पार्टिकल की ये रही यहां पर. क्या मैं इसे इस वेक्टर से निकाल सकता हूं? हाँ निकाल सकता हूं. देखो क्या होगा, और बड़े ध्यान से समझना चाहिए. ये तो t इक्वल टू 0 पे था वेक्टर आपका सी वेक्टर. अब ये एक्चुअली में आपको अज्यूम करना है कि ये रोटेट, अज्यूम क्या करना है, ये हो रहा है सर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी से रोटेट हो रहा है. तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी से जब ये रोटेट होगा तो t टाइम बाद ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल, कितना एंगल ट्रैवल कर लेगा? सर बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछियो, ओमेगा एन टी. टी टाइम में हम ये टी टाइम इलाप्स हुआ ना अभी, और ये ओमेगा एन से रोटेट हो रहा है, तो ये कितना इलाप्स कर लेगा? ओमेगा एन. और ये है आपका सी. तो क्या आप मुझे बता सकते हैं ये लेंथ क्या होगी आपकी? दिस लेंथ. सर वेरी सिंपल. दिस लेंथ विल बी सी साइन ऑफ ओमेगा एन टी प्लस साइन. मतलब सर ये जो x होगा वो c साइन ओमेगा एन टी प्लस साई के बराबर होगा. अरे तो सर ये तो लेके चले थे हम भाई, यही तो था हमारा x. मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं इस मोशन को एक
रोटेटिंग वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकता हूं जो कि, ध्यान से समझिएगा, जो कि ओमेगा एन से रोटेट कर रहा है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी से रोटेट कर रहा है, एंड दिस इज द सी रोटेटिंग वेक्टर। अब आप इसे वापस से समझें, एक बार स्टार्ट करते हैं वापस से हम। इतना तो मैं इसको ऐसा कैसे ही रख लेता हूं, अब इसको मैं थोड़ा सा इसमें मैं बहुत सारी चीजें ऐड करूंगा, वो डायग्राम डिस्टर्ब ना हो, इसलिए इसको हम नीचे ले लेते हैं। ये तो सर समझ में आ गया। अब आप पूरी साइकिल समझते हैं। आप चालू हुए टी इक्वल टू 0, यहां से आप यहां पहुंचे, आपका पीक आया, ये पीक आया, पीक आया, पीक आया, मतलब आपका वेक्टर ये रहा। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका प्रोजेक्शन लोगे तो क्या आएगा सर, सी आएगा, ये तो 90 डिग्री है तो पूरा प्रोजेक्ट हो जाएगा सी। तो सर सी मैक्सिमम वैल्यू है, हाँ देख लो, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, साइन मैक्सिमम कितना हो सकता है 1, तो एक्स की मैक्सिमम वैल्यू सी हो सकती है, दैट्स इट। तो ये भी सेटिस्फाई हो गया, देखो यहाँ पर। फिर आपका पार्टिकल यहाँ आया, मैं अलग अलग उसके पास दिखा रहा हूँ आपको, कहाँ कहाँ वो ट्रैवल कर रहा है आपका पार्टिकल। ये पार्टिकल यहाँ आया आपका, चलो थोड़ा सा इसको नीचे ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं, रिप्रेजेंट करना आसान होगा मेरे लिए। ये हटा देता हूँ मैं, जरूरत नहीं है इसकी, पीछे में दिखा रहा हूँ। ये रहा आपका वेक्टर। अब और कोई पोजीशन देख लो, मतलब पार्टिकल कैसे चल रहा है आपका, सर पार्टिकल यहाँ से चालू हुआ, ये यूं चला, यूं चला, यूं चला, मतलब ये हमारा पाथ, पार्टिकल तो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है डेफिनेटली, बट ये उसकी इक्वेशन एक्स वर्सेस टी है, तो यहाँ तक पहुंच गया, यहाँ तक पहुंच गया। यहाँ पर कैसे दिखाओगे भाई इसको, यहाँ पर ऐसे दिखा देंगे सर। अब तो क्या है, अब तो समझ में आ गई पूरी पिक्चर, समथिंग लाइक दिस दिखा दो। फिर आप यूं जाओगे, यूं जाओगे, यूं जाओगे, यूं जाओगे, यहाँ आओगे, तो यहाँ आओगे तो कहाँ होगा आपका वेक्टर, यहाँ होगा आपका वेक्टर। क्या ग्राउंड कंप्लीट हुआ, नहीं, आपने स्टार्ट कहां से किया था, रिमेंबर माय फ्रेंड, यू स्टार्टेड फ्रॉम हियर। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ग्रीन से, ग्रीन से नहीं, कोई बहुत ही ऑरेंज से, थोड़ा मोटा बना देता हूँ ताकि आपको याद रहे आप यहाँ से स्टार्ट किए थे। दिस इज टी इक्वल टू 0, यहाँ से स्टार्ट किए थे, अभी देखो टी इक्वल टू 0 है, और ये पूरा सर्कल घूमकर जब यहाँ आएगा, तो यहाँ पर नहीं आया सर्कल, सर्कल खत्म होगा आपका यहाँ पर वापस, तो ये पूरा आपका एक साइकिल कंप्लीट हुआ। तो 1 रिवॉल्यूशन ऑफ दिस इज 1 साइकिल, ठीक है, लाइक दैट। तो यहाँ पर कुछ क्वांटिटीज डिफाइन करते हैं जो बहुत ही पर्टिनेंट है। हम पहली क्वांटिटी डिफाइन करते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल। बस थ्योरी ओवर हो चुकी है डियर इसकी ऑलमोस्ट, है ना। मैं आपको इसके पीछे जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो बताऊंगा। कितना टाइम होगा, आप क्या, बहुत सारे तरीके हैं। आपको पता है कि ओमेगा एन से रोटेट हो रहा है, ओमेगा एन से रोटेट हो रहा है, मतलब अच्छा एक मिनट, टू कंप्लीट वन साइकिल, वन साइकिल कितने की है इसकी, 2 पाई की है वन साइकिल, करेक्ट ना। यहां से देखो तो 2 पाई में कंप्लीट हो रही है एक साइकिल पूरी। तो रोटेटिंग वेक्टर्स इंट्रोड्यूस करने से यही हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाता है। और मतलब ओमेगा एन रेडियन पर सेकंड से ट्रैवल कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ एक सेकंड में ओमेगा एन रेडियन, मतलब एक रेडियन 1 अपॉन ओमेगा एन सेकंड में, तो 2 पाई रेडियन कितनी देर में होंगे, 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो टाइम पीरियड आ गया आपका 2 पाई अपॉन ओमेगा एन सेकंड्स। अनदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला टू बी रिमेंबर्ड, एक होता है, एक और टर्म होती है फ्रीक्वेंसी।
फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में कितनी साइकिल? ये तो एक साइकिल में इतना समय लगा। तो जस्ट वैसे तो रिवर्स हो जाएगा, आप इसका देख लीजिए, बट ठीक है, हम देख लेते हैं कि एक साइकिल में 2 पाई अपॉन ओमेगा एन सेकेंड्स। एक सेकंड में कितनी साइकिल ली? ओमेगा एन अपॉन 2 पाई साइकिल। तो फ्रीक्वेंसी आ गई आपकी ओमेगा एन अपॉन वेक्टर। चलो आप थोड़ा सा चीजों को इंटरेस्टिंग बनाकर समझते हैं। यहां पर अब डिफरेंट केसेस लेते हैं, है ना, प्रैक्टिकली क्या क्या हो सकता है। इक्वेशन मेरी एक ही रहेगी, इसी को यूज करूंगा मैं, इसके अलावा और कुछ यूज नहीं कर रहा हूं, ठीक है। गेट में प्रॉब्लम कैसे अटेम्प्ट करना है, आपको क्या आएगा वो अब मैं सब आपको बताऊंगा। पहले जरा इसे हम देख लेते हैं। ये तो इक्वेशन है। मैं केस डिफरेंट केसेस डिस्कस करूंगा यहाँ पर। केस 1, मैंने जो केस लिया था वो जनरल केस लिया था कि यहां पर मैं डायग्राम भी ले आता हूं, फिर बात करेंगे तो मजा लग आएगा। चलिए बहुत ध्यान से समझिएगा। ये बहुत जनरल केस है, बहुत जनरल नहीं, बहुत कॉमन केस है। जनरल केस तो ये था कि जहां पर हमने क्या अज्यूम किया था, x इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0, x इक्वल टू x और t इक्वल टू 0, v या x डॉट इक्वल टू v। दिस इज व्हाट वी हैव अज्यूम्ड। चलो अब एक केस लेते हैं कि हमने सिर्फ स्प्रिंग को स्ट्रेच किया और रिलीज कर दिया, रिलीज्ड विथ 0 इनिशियल वेलोसिटी। तो क्या होगा डियर, देखते हैं। सिंपल है यार, v नॉट 0 हो जाएगा, और क्या होगा, बस v नॉट 0 डाल दो बस। तो ये इक्वेशन है आपके पास, इसमें v नॉट 0 डाल दो तो x हो जाएगा आपका x नॉट, और यहां आ जाएगा आपका साइन ओमेगा एन टी प्लस v नॉट 0 हो गया आपका, मतलब tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी कितना होगा, पाई, पाई बाय 2, 90 डिग्री, पाई बाय 2, मतलब x इक्वल टू x नॉट साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा। ये क्वेश्चन आ जाएगा, ये देखी होगी आपने बहुत बार। ये मतलब यूजुअली मैं आपको बताऊं, बहुत सारी जगह पर या बहुत सारे, अगर आप कभी लेक्चर देखे भी होंगे फ्यूचर में, तो यही बताते हैं बस। ये वाला केस डिस्कस नहीं करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट। मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूं अपने, बट ये ज्यादा जनरल केस है, इससे आप कुछ भी डिराइव कर सकते हो। अब इसे प्लॉट कर लो, कोई बहुत बड़ी बात तो ना है, और प्लॉट करके अब इंटरप्रीट करेंगे रिजल्ट्स को। x इक्वल टू t इक्वल टू 0, इनिशियल है आपका x नॉट, t इक्वल टू 0, ये 1 हो जाए, t इक्वल टू 0 पे ये 1 हो जाएगा, और ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर होगा, राइट। x नॉट, अब जैसे टाइम बढ़ाओगे cos ओमेगा nt की कुछ वैल्यू होगी, लेट से 0.9 हुई, अब 0.9 ऑफ x नॉट मतलब छोटी वैल्यू हो गई x नॉट से, आपका कर्व ऐसे जाएगा। अब बहुत ध्यान से एक चीज समझना, जो मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशन है आपकी यहां पर, वो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस चीज को। क्यों है? क्योंकि आपने क्या किया, आपने बॉडी ली, उसको स्ट्रेच किया और छोड़ दिया, तो डेफिनेटली अब आप कॉमन सेंस लगाओ ना अपना, आपने स्ट्रेच करा और छोड़ दिया, तो ये किस तरफ जाएगा, अभी इसी तरफ तो जाएगा, तो ये अब आपकी एक्सट्रीम पोजीशन बन चुकी है। और एक्सट्रीम पोजीशन का मीन पोजीशन से जो डिफरेंस होता है वो क्या होगा, वो आपका एम्पलीट्यूड होगा। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड, विच इज x नॉट ओवर हियर। यहां पर अगर आप देखो तो ये है आपका एम्पलीट्यूड, दिस इज योर एम्पलीट्यूड,
which is not equal to x naught. Why? Common sense. देखो आप, ये आपका x naught है, राइट? ये आपका x naught, ये x naught नहीं, सॉरी, ये आपका x sin ओमेगा t, ये a है आपका। एम्पलीट्यूड आपका ये है, देखो यहाँ पर c के बराबर। ये मैक्सिमम जा रहा है ना, वो ट्रैवल, मैक्सिमम x ट्रैवल कितना है? ये। क्यों ऐसा? कॉमन सेंस लगाओ, बिल्कुल, इवन अ स्कूल चाइल्ड विल टेल यू दिस, कि आपने यहां पर रखा इसको और यहां पे लाके आपने फर्दर एक इधर वेलोसिटी दी है, तो ये जितनी, जब तक ये, अब देखो यहाँ वेलोसिटी दी है तो यहाँ फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो आप देखोगे कि इसके ऊपर एक पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है, बट आपने ऐसे किसी वेलोसिटी से थ्रो किया आगे की तरफ, तो ये वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होगी और एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जीरो हो जाएगी और फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है अभी भी। तो ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन x नॉट ना होते हुए कुछ और, दिस विल बी द एक्सट्रीम पोजीशन, और ये मीन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो c होगा, इक्वल टू x नॉट प्लस v नॉट स्क्वायर अपॉन ओमेगा n स्क्वायर का रूट। ऑब्वियसली बात है यार, यहां पर आपने इनिशियल वेलोसिटी दी है इस डायरेक्शन में, दैट्स इट, दैट्स द ओनली रीजन फॉर दैट। तो वो x नॉट को ओवरशूट, x नॉट से आगे चला जाएगा क्योंकि आपने वेलोसिटी दी है इनिशियल। अब इसमें केस ये भी हो सकता है, इसमें एक ये केस हो भी सकता है, सेकंड केस, पूछने वाला कुछ भी पूछ सकता है आपसे कि भाई ये काम कर, तू तो एक काम कर, डू वन थिंग, तो डिस्प्लेस ही ना कर। अरे सर कैसे बात कर रहे हो, तो सिस्टम को इनिशिएट कैसे करेंगे? मैं बता रहा हूँ सिस्टम को इनिशिएट कैसे करेंगे। एक काम कर, ये t इक्वल टू 0 हो गया तेरा, इसको डिस्प्लेस मत कर, सीधे वेलोसिटी दे दे यहाँ से, टक करके इसको छोड़ दे, मतलब एक वेलोसिटी से बढ़ा इसको आगे, तो x इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू 0, बट एट x इक्वल टू 0, सॉरी आई एम सॉरी, t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0, और यहाँ पर हाँ ये बात भी है, t इक्वल टू 0 आपका x इक्वल टू 0 है, तो वही x नॉट 0 है, वही लिखा है मैंने, और t इक्वल टू 0, हाँ यू हैव सम इनिशियल वेलोसिटी v नॉट। तो चलिए, लेट अस रिकॉल आवर गुड इक्वेशन, जनरल इक्वेशन समझते हैं फिजिकली क्या कह रही है। x नॉट 0 हो जाएगा आपका, x हो जाएगा आपका v नॉट बाय ओमेगा n स्क्वायर sin ओमेगा n t प्लस tan इनवर्स ऑफ 0 is 0, तो दिस विल बी लाइक, इसको प्लॉट कर लो, समझ में आ जाएगी सारी चीजें अपने आप आपको। इवन anyone can plot this, t equal to 0, x equal to 0, देखो जो फिजिक्स आपका उधर है वो इधर इधर भी आ रहा है, t equal to 0, x equal to 0 आएगा, फिर इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है जब पाई बाय 2 होगा 90 डिग्री पर, तो v नॉट बाय ओमेगा n स्क्वायर, और इस तरह से कर्व चलता रहेगा एज एक्सपेक्टेड। तो यहां पर आपका एम्पलीट्यूड v नॉट बाय ओमेगा n स्क्वायर, सॉरी आई थिंक v नॉट स्क्वायर था, एक मिनट रुक जाओ, ये ओमेगा n नहीं आएगा, ठीक है, लगता है। तो दिस इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट ओवर हियर, मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूं फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम लोग। कि आपने सबसे जनरल केस लिया सबसे पहले, जहां पर इनिशियल वेलोसिटी भी दी आपने और इनिशियल डिस्प्लेसमेंट भी दिया, इसलिए आपका जो एम्पलीट्यूड था वो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा था क्योंकि आपने इनिशियल वेलोसिटी भी दी, और इसलिए आपका ग्राफ कुछ इस तरह से बना जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट टू रिमेंबर इज दैट कि आप बस कुछ भी याद नहीं रखना है आपको। अब मैं आपको बता देता हूँ गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तो ये इक्वेशन याद रखो, मैं हाईलाइट कर देता हूँ तुझे याद रखनी है, और हम कॉम्पिटिटिव फील्ड में आ जाते हैं। ये एक तो ये याद रहेगा वैसे तो आपको, आई होप, और एक ये इक्वेशन। अब सबकी अलग अलग इक्वेशन याद नहीं करनी है आपको, जो क्वेश्चन दे वो डाल देना 0 और आंसर ले आना, बस बात खत्म। और ध्यान रखना ये इनिशियल कंडीशंस है इसमें,
खत्म। चलिए प्रॉब्लम एक लेते हैं सिंपल सा और देखते हैं। एक स्प्रिंग दी हुई है आपको जिसकी स्टिफनेस है, अभी मैं आपको गिटार का कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा इसमें, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स का, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स का, है ना। और मास है, पहले एक क्वेश्चन करके थोड़ा सा हम कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। 10 पी इज गिवन इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ 80 mm। आपको पहले तो एम्पलीट्यूड निकालना है, सेकेंड आपको ओमेगा एन, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी निकालनी है। मतलब बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बट देर आर सम इम्प्लीकेशंस ऑफ इट। ओके, ऐसा नहीं है कि वैल्यूज आएंगी कुछ समझ में आएगा। चलिए एक्स टी हम जानते हैं क्या है हमारा, x is a function of time, we know the value very well, this is the formula with us। अब यहां पर इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ही लिखा है, इनिशियल वेलोसिटी दी नहीं है आपको, तो इसको हटा दो। दी नहीं है तो ले भी नहीं सकते आप। तो आपकी इक्वेशन ही आ जाएगी x इक्वल टू एक्स नॉट साइन, हम जानते हैं cos ओमेगा एन टी हो जाएगा। एम्पलीट्यूड क्या होगा आपका, फर्स्ट आंसर सर, एम्पलीट्यूड विल बी इक्वल टू एक्स नॉट विल बी इक्वल टू 80 ओमेगा एन। नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होगी आपकी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी रूट के बाय एम इक्वल टू के है आपका, कितना दिया है मैंने 100। एक काम करो 1000 ले लो इसको, 1000/10, ये आएगा आपका 100 और रूट ऑफ 100 इज 10, तो 10 रेडियन पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ओमेगा एन अपॉन 2 पाई, देख लीजिए आप। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है ओमेगा एन अपॉन 2 पाई, और इसे अगर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 10 अपॉन 2 पाई मतलब 1.59, मतलब एक सेकेंड में 1.59 वन साइकिल एग्जीक्यूट होती है। और टाइम पीरियड एक साइकिल कितनी देर में हो रही है, 2 पाई अपॉन ओमेगा एन, तो दिस इज 0.6। मतलब एक साइकिल को कंप्लीट होने में एक सेकंड से भी कम समय का समय लग रहा है, तभी तो एक एक आप देख सकते हैं कि दिस नंबर ऑफ साइकिल्स आर एक्टिंग पर सेकंड, साइकिल्स पर सेकंड। चलिए अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट लेकर आते हैं। ये तो है ही, प्लस एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड दिया, वापस से आपको वही सब चीजें निकालनी है। तो कोई बात नहीं, हमारे पास फॉर्मूला है। अब ये 0 नहीं होगा, ठीक है दोस्त। चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं, x इक्वल टू एक्स नॉट है आपका 80 mm, ठीक है, तो 0.08 का होल स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड लिया है हमने, करेक्ट, मीटर पर सेकेंड, ओमेगा एन है 10 का होल स्क्वायर। आप भी कैलकुलेट कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। साइन ओमेगा एन टी प्लस tan inverse of 0.08, omega n is 10, and the initial velocity given is कितनी भाई, 5 square
प्लस 0.5 स्क्वायर एक्स आया, ये सी आया आपका 0.506 मीटर्स, मतलब सी आया आपका 506 mm. Now just observe a change in the amplitude. That's what I'm saying. यहां पर एम्पलीट्यूड आपका 80 mm था और यहां पर आपका एम्पलीट्यूड आया है तकरीबन 500 mm के आसपास. So why there is such a boost over here? The reason for this boost is you have given an initial velocity. और समझते हैं इसको. अब ये दोनों एग्जांपल्स आपको एक्सप्लेन करेंगे स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स को. समझते हैं. बाकी चीजें कैलकुलेट करें जरा. ओमेगा एन कैलकुलेट करें. सर ओमेगा एन तो रूट के बाय एन, मतलब वही 1000/10, मतलब सर वही 100, मतलब वही 10 रेडियन पर सेकेंड, मतलब फ्रीक्वेंसी वही है. अच्छा ठीक है. टाइम पीरियड कैलकुलेट करें 2π/ω. अच्छा ठीक है. तो सेम 0.62. फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करें सेम 1.858 साइकिल्स पर. क्या इंटरप्रीट कर सकते हो आप? अब समय है डेटा इंटरप्रिटेशन का. तो इंटरनेट भी स्टेबल हो गया होगा. अब ध्यान से समझिएगा चीजों को. देखिए, नाउ इफ यू ऑब्जर्व ओवर हियर, जो चेंजेस आए हैं वो एम्पलीट्यूड में आए हैं. नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है सिस्टम की, उसमें कोई चेंज नहीं आया. और ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है आप लोगों के लिए. क्यों बहुत बड़ा रिलीफ है सर? ऐसा क्या हो रहा है? देखो, आप सभी ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट देखा होगा. किसी को प्ले करते हुए देखा होगा या आप खुद ने प्ले किया होगा. ठीक है. अनफॉर्चुनेटली मेरे पास अभी नहीं है, दूसरे वाले घर पे रखा हुआ है. ये तो मैं आपको दिखा देता हूँ. गिटार से मैं आपको बता देता, बट ये आप इमेजिन कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए. देखिए मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है. यू हैव, लेट्स इमेजिन दैट कि आपके हाथ में गिटार है, आपके हाथ में स्ट्रिंग है. ठीक है. यू हैव अ स्ट्रिंग इन योर हैंड, यू प्लग इट, टिंग, है ना. यहाँ पर स्ट्रिंग है और देखो ये फ्रैट होते हैं. अगर आपको थोड़ा सा मैं इन्फॉर्मेशन दूं गिटार के बारे में, तो आप कोई पर्टिकुलर फ्रैट पे प्रेस करके रखोगे और इधर स्ट्रिंग प्लग करोगे वही वाली, तो आपको एक पर्टिकुलर साउंड जनरेट होगा. लेट्स से मैंने यहाँ रखा है तो सा आएगा, यहाँ रखा तो रे आएगा. तो सा रे ग म प ध नि सा नी ध प म ग रे सा, लाइक दैट. सो यू मूव योर फिंगर्स and you plug your fingers accordingly over here, you will get सारे ग म प ध नि सा नी ध प म ग रे सा. अब लेट्स टॉक अबाउट सा. आपने सबसे पहले क्या किया? सा पे अपना फिंगर होल्ड किया. डजंट मैटर आपको इंस्ट्रूमेंट आता है नहीं आता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ. इट्स ओनली कि आपको इतना तो कॉमन सेंस आप समझिए कि आपने एक यहाँ पर फ्रेट पकड़ा, आपने इधर प्लग किया स्ट्रिंग को, तो सा आया आवाज फॉर एग्जाम्पल. अब वो आवाज क्या है? बेसिकली वो साउंड क्या है? वो साउंड एक डिस्टर्बेंस है जिसकी कुछ फ्रीक्वेंसी है और वो फ्रीक्वेंसी से वो नोट जनरेट हुआ है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उस फ्रीक्वेंसी से वो नोट जनरेट हुआ है. सा नोट जनरेट हुआ है. फ्रीक्वेंसी बदल दूंगा तो वो नोट चेंज हो जाएगा. तो हर एक नोट की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है. सा ओम की अपनी फ्रीक्वेंसी के, तो फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड. मैं आपको कहा फ्लूइड मैकेनिक्स में कि साउंड प्रोपोगेट्स इन द फॉर्म ऑफ अ वीक प्रेशर वेव. So whenever you create a disturbance, it will propagate in a medium with the speed of with acoustic speed, approximately 340 meter per second in the air, in still air. चलिए, coming back to our discussion, तो मैंने इधर सा प्लग किया तो आपको सा ही सुनाई देगा. करेक्ट, ऑब्वियस सी बात है. अब इस चीज को ध्यान से समझिएगा. मैंने स्ट्रिंग हाथ में ली और मैंने बहुत जोर से प्लग करा उसको, मतलब उसको एक इनिशियल डिस्प्लेसमेंट दे दिया बहुत ज्यादा.
और स्ट्रिंग मेरी अभी भी इसी फ्रेट पर है, यहाँ पे ये वाला, सॉरी जो मेरा हाथ है ये अभी भी इसी, इसको चेंज नहीं किया मैंने, नोट चेंज नहीं किया है यहाँ पर, और मैंने इधर से स्ट्रिंग ली और बहुत जोर से प्लग कर दिया, तो क्या होगा बताओ? अभी भी आपको सा सुनाई देगा या नहीं सुनाई देगा? कैन यू टेल मी दैट? जस्ट बाय योर एक्सपीरियंस, कैन यू टेल मी दैट? आशी, यू कांट से दैट। सा सुनाई देगा, डियर, सा सुनाई देगा। आप नोट को अगर यहां पर स्ट्रिंग को जोर से भी प्लग करोगे तो सा सुनाई देगा, बट जोर से सुनाई देगा। मैंने इधर से नोट चेंज नहीं किया है। जस्ट गेट मी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। थोड़ा इसमें आपको म्यूजिक का नॉलेज होना चाहिए। अरे तबला है, जैसे तबला भी अभी मेरे पास नहीं, वो भी दूसरे घर पर रखा हुआ है, आई वुड हैव शोन यू। फ्रीक्वेंसी सेम, यस एग्जैक्टली। क्योंकि देखो आप बात समझो, फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड कर रही है आपकी? सिर्फ के और एम पर, और वो चेंज नहीं किया है आपने। आपने यहां पर स्ट्रिंग को ज्यादा जोर से प्लग करके, मतलब इसको इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा दे दिया, तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट पर फ्रीक्वेंसी डिपेंड नहीं करती है आपकी। योर फ्रीक्वेंसी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन इनिशियल ऑन योर एक्स नॉट, कि आपका एक्स नॉट क्या था, इनिशियल कंडीशन से परे है ये। यही तो खूबसूरती है, तभी तो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स वर्क करते हैं। तो आपकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है वो आपकी एक्स नॉट क्या है, वी नॉट क्या है, डजंट केयर। आप चाहे इनिशियल वेलोसिटी दे दो उसको, चाहे आप इनिशियल डिस्प्लेसमेंट दे दो, उसकी फ्रीक्वेंसी सेम रहने वाली है, क्योंकि उसका मास और उसकी स्टिफनेस फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं कर रहा। वो चेंज कर दोगे तो चेंज हो जाएगा, और वो चेंज होगी फ्रेट टू फ्रेट जब आप अपने फिंगर्स को चेंज करोगे। दैट इज हाउ इंस्ट्रूमेंट्स आर डिजाइन। हाँ, एम्पलीट्यूड चेंज होगा, वो जरूर चेंज होगा। अगर आपने ज्यादा जोर से प्लग कर दिया, मतलब लेट से आपने फिंगर होल्ड करी और लंबा डिस्प्लेसमेंट दे दिया आपके गिटार को, स्ट्रिंग को ज्यादा जोर से प्लग कर दिया, तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा दिया ना आपने। अरे यार, स्ट्रिंग को कभी हैंड प्लगिंग देखी हो आपने, किसी को हैंड प्लग करते हुए, तो वो हाथ से डिस्प्लेस करते हैं, हैंड प्लगिंग करते हैं गिटार पर ऐसे। तो आपने इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा दे दिया, तो कुछ नहीं है, सामने वाले ऑब्जर्वर को साउंड ज्यादा सुनाई देगा, लाउडनेस आएगी इससे। तो एम्पलीट्यूड से लाउडनेस आती है, और फ्रीक्वेंसी से आपके नोट्स आते हैं। तो दिस फिजिकली रिप्रेजेंट्स लाउडनेस। साउंड की बात करें तो साउंड के पर्सपेक्टिव से, और ये रिप्रेजेंट करता है आपका नोट, काइंड ऑफ सा रे ग म। राइट इन इंग्लिश ओनली, सा रे ग। दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। तबले में भी यही होता है। तबला अगर आपने परक्यूशन प्ले किया हो तो, एनीवन ओवर हियर हु नोस टू प्ले गिटार और वायलिन और सितार और तबला? नो वन। क्या करते हो यार, सिर्फ पढ़ाई करते हो? नो वन। बैंड बैंड नहीं तुम लोगों का किसी का कॉलेज में? सर हमारा नहीं, हम तो पढ़ने वाले बच्चे थे, अभी तो गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जो नहीं पढ़ रहे उनका बैंड है। ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है जरूरी यार। मतलब यू हैव टू इन्वॉल्व योरसेल्फ। अब तो टाइम नहीं है आपके पास, बट इनिशियल स्टेजेस में यू शुड इन्वॉल्व योरसेल्फ इन ऑल दोस एक्टिविटीज। एटलीस्ट बैंड बैंड ना हो, बट प्ले तो करना चाहिए आपको। चलो कोई बात नहीं है, तो अपना पर्सनल चॉइस है। आप हो सकता है म्यूजिक में इंटरेस्ट ना हो, बट किसी और फील्ड में होगा, ऐसा तो होता नहीं। तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहो, बस ये कहूंगा मैं आपको, है ना। म्यूजिक इज नॉट ओनली, इज जस्ट मस्ट बी बाय चॉइस। ये तो चॉइस है आपकी, ऑल डिपेंड्स। तो वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है क्या क्या चॉइसेस है। हॉबीज जिसको कहते हैं, तो कोई फुटबॉल में इंटरेस्टेड होता है, कोई गिटार में होता है, कोई परक्यूशन में होता है, कोई कोई पबजी। आजकल तो पबजी में ज्यादा होते हैं वैसे लोग। पबजी कितने लोग खेलते हो जरा बताओ तो ईमानदारी से। पबजी और एक और क्या नाम है उस गेम का, तो बॉल्स क्लियर करते हैं, आई डोंट रिमेंबर द नेम। क्रेजी बॉल्स, क्या बोलते हैं गेम का नाम तो बता दो। क्रेजी बॉल्स, और वो आई एम नॉट गेटिंग दैट। चलो व्हाटएवर इट इज। पबजी कितने लोग खेलते हो ये तो बता दो कम से कम। चलो अच्छा ठीक है। यू डोंट प्ले म्यूजिक। कैंडी क्रश, यस कैंडी क्रश, यू गॉट इट धनुषी, करेक्ट। कितने लोग आप में से ऐसे हैं जो पबजी और कैंडी क्रश नहीं खेलते? अमंग अस, या आप ही लोगों में से पूछ रहा हूँ। हाँ,
नहीं खेलते हो? चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। अभी नहीं खेलते, पहले खेले हो, अब नहीं खेलते, ओके। ठीक, दैट्स गुड। ये तो अच्छी बात है। अच्छा, नया गेम आ गया है क्या? अमोंग अस। अच्छा, अमोंग अस। अच्छा, इट्स अ न्यू गेम, ओके ओके ओके। Actually, I'm not at all aware about this. When I was at your age, I mean in 2010, I mean 2010 I was in third year. I used to play PlayStation. प्ले स्टेशन खेलता था क्योंकि हमारे टाइम पे मोबाइल नहीं होते थे। सो माइट बी अगर उस टाइम पे मोबाइल फोन्स होते तो आई वुड हैव प्लेड दिस, बट थैंक गॉड कि इट वाज नॉट देयर। सो प्ले स्टेशन इज ऑलवेज अ बेटर, यू नो, इट्स अ बेटर चॉइस। So Among Us is a new game. Okay, fine. So now you are playing that, Urvi. Chalo, anyways, the moral of the story is uh, playing games is not a bad thing. You should play. There is no problem with it. But in a limit, that is what. और बात यही होती है कि लिमिट तो होती नहीं है, मतलब वो प्ले स्टेशन ही क्या जिस पे आप लिमिट में आधी घंटा 1 घंटा खेल के छोड़ दो, करेक्ट? इट मस्ट बी लाइक गो फॉर 2 3 4 5 6 hours लाइक दैट, तभी उसका मजा आता है ना। ग्रुप में जब when you make a group and you play all those stuff and all those things. But anyways, चलिए, आप नहीं भी प्ले करते हैं तो आप एक्सपीरियंस करके देखिएगा इस चीज को। आई होप मेरा ये पॉइंट समझ में आया आपको कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाउडनेस एंड अ नोट। नोट्स आर सारे गमा पद नी सा व्हिच टोटली डिपेंड्स ऑन योर मास एंड स्टिफनेस ऑफ द सिस्टम। और जो आपके क्या कहते हैं, वी कॉल देम एज व्हाट, कितना तेज सुनाई देगा वो डिस्प्लेसमेंट पे फर्क पड़ेगा आपका। तो आप जितना जोर से प्लग करोगे उतनी जोर से आवाज आएगी। बट लेट मी रिमाइंड यू, ऐसा लाउडनेस इज नॉट, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो साउंड बड़ा स्मूथ होगा, है ना। वो टोटली डिपेंड करेगा कि आप कितना, आपका कितना होल्ड है आपके सिस्टम पर, मतलब अपने म्यूजिक पर। मैं वही कह रहा हूँ आपको, देखो सीधी सी बात है, जल्दी से लाइफ में ये चीजें खत्म करो। एक बार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करो, करियर सेट करो, और फिर इस चैप्टर को खत्म करो। लाइफ में बहुत कुछ है करने के लिए, पता भी नहीं चलेगा कब 20 से 30 के हो जाओगे। मैं बता रहा हूँ, पता भी नहीं चलेगा। और ये 20 से 30 का टाइम अगर इन सब में लगा दिया ना तुमने, करियर पूरे टाइम करियर बनाने में, अब ये आपके ऊपर है कि 20 से 30 में या तो 22-23 तक करियर बना के खत्म करो इस चीज को, है ना। फिर वो अपनी एक स्टडी ग्रोथ पे चलता रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ करियर के ऊपर ध्यान नहीं देना, बट फिर लाइफ में बहुत सारी दूसरी चीजें भी होती है करने के लिए। सिर्फ यही थोड़ा करना है आपको, इसलिए थोड़ा है कि सिर्फ पैसा कमाना है और करियर बनाना है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल करियर ड्रिवन होते हैं, उनके लिए भी वो भी गलत नहीं है। अगर वो ऐसा करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, बट इन जनरल अगर मैं बात करूं तो हर कोई ऐसा नहीं होता है। जैसे कि मैं हूं फॉर एग्जांपल, या मोस्ट ऑफ यू आप में से ऐसे होंगे। तो यू मस्ट नॉट ऑलवेज बी, ठीक है, करियर एक बहुत अच्छी चीज है, एक बार सेट कर दिया आपने, अच्छी गेट रैंक लिया है और आप पीएसयू ज्वाइन कर लिए, तो ठीक है, वर्क वेरी एफिशिएंटली ओवर देयर, पूरा ध्यान रखो, एक्सप्लोर करो चीजों को, इंजीनियरिंग को एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा आपको वहां पर। बट उसके बाद आपके दिमाग से एक लोड खत्म हो जाता है कि यार मेरा फ्यूचर अब क्या होगा। तो फिर देन यू कैन इन्वॉल्व योरसेल्फ इन लॉट ऑफ एक्टिविटीज, वेदर इट इज म्यूजिक, फिटनेस एक्टिविटीज। अब तो फिटनेस के इतने सारे इवेंट्स होते हैं, ट्रायथलॉन्स होती है, मैराथॉन्स होती है, यू हैव मुंबई मैराथन, राइट। और भी काफी सारी चीजें हैं करने के लिए, साइकिलिंग के इवेंट्स होते हैं। अगर आपको आर्ट में इंटरेस्ट है तो यू कैन परस्यू दैट आल्सो पैरेलली। सो दैट इज व्हाट इज लाइफ, एक्सपीरियंस इट टू द फुलेस्ट। ऐसा नहीं है कि 20 से 30 आप करियर बनाने में निकल गया आपका, फिर तो पता भी नहीं है क्या होने वाला है उसके बाद। तो जल्दी से इस सिस्टम, इस करियर वाले पॉइंट को खत्म करो। कब तक एग्जाम देते रहोगे यार, है? मतलब ये ठीक है, एग्जाम तो लाइफ में हमेशा देनी है आपको, बट कब तक इस तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते रहोगे? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एक्चुअली, दो आई एम अ फैकल्टी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बट आर नॉट वेरी, यू नो, इसको जल्दी से खत्म कर देना चाहिए बस, जितने जल्दी से जल्दी हो सके। दैट्स व्हाट आई से, ठीक है। तो इसलिए खत्म करो इसको। और पता चला 30 तक यही इसी में लगे हो, करियर में लगे हो। हाँ, वो लोग होते हैं जिनका पैशन ही इंजीनियरिंग है, फुल्ली दे आर पैशनेट अबाउट इंजीनियरिंग, तो उनको तो यही हॉबी है उनकी,
तो फिर तो डेफिनेटली वो लोग पीएचडी करेंगे, पोस्ट डॉक करेंगे, एमटेक करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो क्योंकि उनको उसमें मजा आ रहा है, तो दैट इज ऑल्सो बेस्ट, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। बट वो सिर्फ पैशनेटली करना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिग्री के लिए डॉक्टरेट ले लिया और वो सब थोड़ी, कोई मतलब नहीं है उस चीज का। पैशनेट हो तो करना, नहीं तो मत करना। दो चीजें होती है, एक तो पैशन होना चाहिए और दूसरा सिचुएशन ऐसी होना चाहिए लाइफ में कि हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है कि आप 7 8 मतलब आप 22 साल इंजीनियरिंग में 22 साल से इंजीनियरिंग से बाहर निकलो, चलो ऑल इंडिया रैंक 50 लेकर आ जाओ, और पता चला अभी आप 30 तक हो गए और यहाँ पर आप पीएचडी और पोस्ट डॉक करके निकले, तो आपका मोस्ट ऑफ द टाइम जो था इधर वो पढ़ने में लग गया, अब रिसर्च में लग गया। अच्छी बात तब है, आपको अच्छा तब लगेगा जब आप अपने 31 में आओगे, तब आपका पैशन था। और आपने बस ये करने के लिए कि 2 3 डिग्री लग जाए मेरे आगे और उसके लिए ये चीज करिए, तो आपको फिर रिग्रेट होगा लाइफ में आगे चल के कि यार ये क्यों करा, वो मत करना पड़ेगा। और ये भी चीज है कि एक और इसका अल्टरनेट एस्पेक्ट है कि जरूरी नहीं है कि ये सब डिग्री लेना जरूरी है आपको, कि डिग्री से ही आपका करियर, देखो डिग्री से करियर बनता है, ऐसा एजुकेशन सिस्टम है हमारा, मैं मानता हूँ इस चीज को। बट इंजीनियरिंग में जो चीजें पढ़ते हो ना, अगर वो भी आपने ढंग से पढ़ ली ना, मैं तो बोलता हूँ 11th का फिजिक्स ही आपको ढंग से आता है ना समझ में, तो भी आप बहुत कुछ वंडर्स कर सकते हो अपनी लाइफ में। तो जल्दी से कॉम्पिटिटिव क्लियर करो, जिसको पैशनेट है जो अपनी इंजीनियरिंग के लिए, वो यस वो जाए और पोस्ट डॉक करे, रिसर्च करे। और जो पैशनेट नहीं है, मतलब पैशनेट नहीं है मतलब सर इतना ज्यादा नहीं है, मतलब कि अब रिसर्च रिसर्च करें और वापस से कॉलेज जाएं और वो सब चीजें करें, हमें प्रैक्टिकल वर्ल्ड एक्सप्लोर करना है। तो पैशन में भी दो चीजों को, एक तो थियोरेटिकल और एक प्रैक्टिकल। तो जिन्हें प्रैक्टिकल पैशन है, प्रैक्टिकल चीजों को देखने का, तो देन यू शुड ज्वाइन एन इंडस्ट्री विद एन हेल्प ऑफ पीएसयू। पीएसयू ज्वाइन करें आप। व्हाट इज सुपर 30? तो पीएसयू ज्वाइन करें, और पीएसयू ज्वाइन करने के बाद वहां पर जितना टाइम आप एक्सपेंड करते हैं 7 8 आवर्स, उस टाइम पर पूरा पैशनेटली चीजों को देखें, समझें, एक्सप्लोर करें, और जो इंजीनियरिंग में सीखा है वो आपको उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करें। ओके, सो और उसके बाद अगर आप अच्छा सुपर 30 मूवी में क्या हुआ था मुझे नहीं पता, मैं नॉट सीइंग दैट, सॉरी। और उसके बाद अगर आपको टाइम लगता है, अपना टाइम बता निकालें, और उस पर्टिकुलर टाइम में आप स्पेंड सम टाइम फॉर योर अदर एक्टिविटीज ऑल्सो। इट कैन बी योगा, इट कैन बी योर अंडरस्टैंडिंग योर इनर वेलबींग, in understanding or participating in marathons, triathlons, whatever you want to do, dance, art, music, whichever thing you would have not pursued just because of something. PlayStation ही खरीद लेना एक और उसको खेलना कम से कम 1 घंटा, whatever. But that should be your projection future. ऐसा नहीं है कि 20 से 30 निकाल लिए जैसे निकलती जा रही है। चलिए, तो इनफ ऑफ अ लाइफ लेसन। अब ये सिस्टम है एक आपका कैंटिलीवर काइंड ऑफ, आपको इसका क्या निकालना है, यू नीड टू कैलकुलेट इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब क्या होता है देखिए, इसे हम लंपिंग कहते हैं। लंपिंग का मतलब ये होता है, तो लंपिंग का मतलब क्या होता है मैं समझाता हूं। आपको इनमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा रिस्टोरेशन एलिमेंट है और कौन सा मास एलिमेंट है मेजरली। तो आप देखोगे कि अगर आपको इसको अगर आप डिफ्लेक्ट करके छोड़ दोगे तो ये वाइब्रेट होगा। क्यों? क्योंकि ये इसकी जो इलास्टिसिटी है मटेरियल की, वो एक्ट करेगी एज अ रिस्टोरिंग एलिमेंट। तो ये आपका रिस्टोरिंग एलिमेंट हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका इनर्शिया एलिमेंट। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्टोरिंग के पास मास नहीं, बट इसके पास मेजर मास है, तो ये हमारा इनर्शिया एलिमेंट हो जाएगा और ये हमारा रिस्टोरिंग एलिमेंट हो जाएगा। तो प्रैक्टिस में ये किया जाता है, रिस्टोरिंग एलिमेंट को अलग से देखा जाता है, इनर्शिया एलिमेंट को अलग से देखा जाता है। ठीक है, धवल हैज गॉट द आंसर, वेरी गुड। चलो, वेरी गुड। बट देयर इज समथिंग मोर टू इट व्हिच आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू ओवर हियर, कि हम क्या करते हैं, हम इसका लम्प्ड पैरामीटर मॉडल बनाते हैं। मतलब ये कि मैं इस बीम को एक स्प्रिंग से कनेक्ट कर दूंगा और इस मास को इनर्शिया एलिमेंट से कनेक्ट कर दूंगा। मतलब ये इक्विवेलेंट स्टिफनेस है और इक्विवेलेंट मास है।
और इसे जब मैं डिस्प्लेस करूंगा यहाँ से, अब ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, और इक्विलिब्रियम पोजीशन जो होगी वो स्ट्रेच्ड होगी क्योंकि ये वर्टिकल सिचुएशन है यहाँ पर। यहाँ पर भी अगर आप इक्वेशन देखोगे, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, न्यूटन्स लॉ लगा के देखिएगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन में आपका क्या होगा। क्लास कितनी बजे से अगली तुम्हारी? है 10 मिनट एक्स्ट्रा, जल्दी बताओ। 11:30 से, चलो बहुत बढ़िया, ये भी बता देता हूँ। इक्वेशन निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो कैसा बनेगा? यहाँ पर mg एट होगा और यहाँ पर k डेल्टा। डेल्टा को कहते हैं हम स्टैटिक डिफ्लेक्शन। डेल्टा इज कॉल्ड एज स्टैटिक डिफ्लेक्शन। व्हाट इज स्टैटिक डिफ्लेक्शन? अभी ये आपका रेस्ट पर है ना, और ये स्टैटिक डिफ्लेक्शन, अब ये मीन पोजीशन है। अब यहां पर आप क्या दोगे इसको, एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दोगे x और छोड़ दो, तो क्या होगा, kx ऊपर की तरफ लगेगा। अब इसका एफबीडी बनेगा नया, the mass has been displaced from its mean position and has entered a new position. kx plus k delta। इक्वेशन ऑफ मोशन है आपकी mg माइनस के एक्स माइनस के डेल्टा एक्स माइनस के डेल्टा। डेल्टा तो स्टैटिक डिफ्लेक्शन है आपका, इक्विलिब्रियम में जो था, इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, और हम जानते हैं mg और k डेल्टा कैंसिल हो जाएंगे, mx डबल डॉट प्लस kx। जितने भी सिस्टम होते हैं इस तरह के उनकी इक्वेशन यही होती है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी इसकी रूट के बाय। अब k कैसे निकालूं? स्टिफनेस, हम जानते हैं इसका डिफ्लेक्शन क्या होगा। We know that the deflection of the system would be यहां पर आपका mg लोड लग रहा है, करेक्ट? PL cube upon 3EI is the deflection. We have derived in previous classes. So P is mg, L cube upon 3EI. अब बेसिकली स्टिफनेस क्या होती है? लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन। आपका स्टिफनेस हो जाएगा यहां पर 3EI upon 3EI upon L. This is equal to P by Y is equals to stiffness. Okay. बड़े अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन है, ठीक है, क्योंकि आपने पैरामीटर्स की लंपिंग करी है। लंपिंग मतलब इकट्ठा किया है, हिस्टोरिकल एलिमेंट को अलग शो किया है, मास एलिमेंट को अलग शो किया है। थोड़ी बहुत स्टिफनेस मास के अंदर भी होगी, थोड़ी बहुत स्टिफनेस, थोड़ी बहुत मास रिस्टोरिंग का भी होगा, बट वी हैव जस्ट डन एन अप्रोक्सीमेट एनालिसिस। अगर ऐसा सिस्टम दे देता तो कर ही नहीं पाते आप, क्योंकि इनफाइनाइट डिग्री ऑफ फ्रीडम बहुत डिफिकल्ट हो जाता। अब यहां देखो आप, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है आपकी वो आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और आप आई बढ़ा रहे थे वहां पर, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे थे आप, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे थे मतलब नंबर ऑफ साइकिल्स बढ़ा रहे थे पर सेकंड, और नंबर ऑफ सेकंड्स पर सेकंड बढ़ा रहे थे। इस कारण से जो डायनामिक स्ट्रेसेस जनरेट हो रही थी वो ज्यादा थी, डायनामिक इफेक्ट
सिग्निफिकेंट होता जा रहा है जैसे जैसे आप आई बढ़ा रहे हो। इसलिए वो रीजन था वहां पर कि सिग्मा नॉट जो आया था आपका डैश डायनामिक कंडीशन में वो ज्यादा आया था आई बढ़ाने के कारण। I increases the natural frequency of the system. More number of cycles. Frequency क्या होती है सिस्टम? देखो 2 pi upon omega n, sorry, omega n upon 2 pi. This is the frequency. I increases, omega n increases, frequency increases, number of cycles per second. तो सीधी बात है, साइकिलिंग भी करोगे और 1 मिनट में ज्यादा बार पेडल मारोगे तो स्ट्रेसेस ज्यादा इंड्यूस नहीं होगी अपने आपकी मसल्स में। केडेंस बोलते हैं इसको। 1 मिनट में कितनी बार कितने रिवॉल्यूशन लोगे आप पेडल के, उसको केडेंस कहते हैं साइकिलिंग की दुनिया में। अगर आप केडेंस इंक्रीज करोगे 70-80 केडेंस इज अ वेरी गुड केडेंस। अगर आप 70-80 केडेंस पे काम कर रहे हो और मान लो सडनली 80-70 पे काम कर रहे हो और 80 तक ले गए सेम गियर पर, नंबर ऑफ साइकिल्स बढ़ेगी आपकी, मतलब ज्यादा पेडलिंग करना पड़ेगी आपको 1 मिनट में। तो आपकी मसल्स में स्ट्रेसेस आएंगी, स्टिफनेस फील होगी, लैक्टिक एसिड फॉर्म होगा जो आपको रोकेगा आगे बढ़ने से। इट्स अ डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ योर बॉडी। क्वेश्चन अभी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेंगे। देखिए मैंने एक बेसिक एप्टीट्यूड डेवलप कर दिया है आपका 11th क्लास की एससी वर्मा से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। उसमें भी डैम दिया होगा आपको, सिर्फ अनडैम नहीं करना है, ठीक है। Any doubts, please ask. Any doubt, please ask. Hopefully next week we'll be starting with fluid mechanics. Okay, we will. मैं अनाउंस कर दूंगा एक बार ग्रुप पे ऑफिशियली। टाइमिंग्स आपको वही रहेंगी, टाइमिंग्स यही रखना है ना क्लास के लिए। कंफर्टेबल विद द सेम टाइमिंग 8 to 10 मॉर्निंग। मॉर्निंग बेस्ट है यार, फ्रेश रहते हो और शाम तक तो फिर क्या एग्जॉस्ट हो जाते हो आप। आई थिंक मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइम टू स्टडी। ठीक है, नाउ यू कैन लीव द सेशन एंड स्टडी एंड एंजॉय योर संडे। ओके, चलिए मिलते हैं। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए।